मैं अपनी दूसरे प्रोविजन है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो 1 तारीख से अभी इम्प्लीमेंट होने वाली 1 अक्टूबर से, एंड दिस इज फॉर एवरी बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से अबव है एंड ट्रांजैक्शंस काफी हेवी है, एंड एक एम्पली डिजाइन प्रोग्राम है ये, और हमारे स्पीकर नरेश जाखोटिया जी है जो इसके ऊपर आपको डिटेल्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आई एम रिक्वेस्ट माय प्रेसिडेंट वीआई सुरेश राठी जी सर फॉर वेलकम एड्रेस। Thank you, Sachin. Thank you so much. Gentlemen, welcome on this very important discussion that we are really going to have on a new section 206C1H, which has been recently introduced by the government. Gentlemen, to tell you all, when I took charge, since then I'm always talking about ease of doing business. And since then, I think, I hope that government will definitely try and for that. And time and again, we can really listen to that India is really progressing and that we are going up in the list of ease of doing business in the world. But I think time and again also, whereas they are trying to remove so many provisions, they're also coming up with lot many provisions. And this is one such provision that has come once again, maybe to make our systems and everything a little more complicated for our accounts department. In fact, the ease of doing business is something that VI is really working on. But then as this has come in our EC meeting held on Saturday, 26th of September, while we took up this matter and we really discussed, initially I really thought it is a simple that I need to really deduct 0.1% or 0.75% of the sales value and get paid to the government. But there are so many other provisions that has come in. So while discussion, we could really feel the importance of it. And we really wanted it to have it immediately as the provision is applicable from 1st of October. So Naresh ji has immediately volunteered and he said, okay, he can come up and he can really take up this matter, take up this provision, and that we can really have good discussion. So I think we requested him to kindly do the needful, and today all of us are here. And let us all hear it from Naresh directly. I will not go into the details. The provision is applicable from 1st till 31st of December. We have a different provision. From 1st, we really have a different rate of tax to be deducted. And there are some other, a little complicated thing is that we need to make it on receivables also. That anything that is really pending as on 30th of September, and after 1st, whatever amount we receive from those who are supposed to pay that, I think, yes, we are supposed to also deduct TCS. So that's a little complicated thing what Naresh is going to really can elaborate and tell us all in detail. Friends, I'm really happy the kind of people those who have joined in today. And especially, I think people like Govindji Mantri and Damoji Sada, I think, yes, these are the people, those are really big taxpayers, those who really need this provision. So welcome to all of you. Over to Sachin. Thank you. Thank you so much, sir. Without taking any time, it's our chance to hear our chairman of VI Taxation and Corporate Law Forum and past president of CA Institute, Sri Ashokji Chandak. Sir, please your opening remarks. उपस्थित सभी सज्जनों, आपको सभी को मालूम है कि VI टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ फोरम जब भी कोई नवी प्रोविजन आती है तो नवी प्रोविजन को बड़ी सिंपल तरीके में जिनको वो एप्लीकेबल होना है उनको समझाने की कोशिश करती है। टीडीएस और टीसीएस हमारे यहाँ दो नाम है, एक को कहते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और एक को कहते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं दोनों को विथहोल्डिंग टैक्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आप किसी को सप्लाईज इसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आता है। और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स,
आप कोई भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव हो रहा है तो उसके अंदर में भी आपको टैक्स कलेक्शन करना पड़ता है। आपके पास रिसीव हो रहा है पैसा सामने वाले से तो भी आपको उसमें कलेक्शन करना पड़ता है। विथहोल्डिंग टैक्स की प्रोविजन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रोविजन है, बड़े अलग अलग तरीके से हर कंट्री के अंदर में फॉलो अप होती है। वैसे हिंदुस्तान में भी इसका दायरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। पिछले बजट में 3-4 प्रोविजन लाई है जिसके अंदर में कैश विड्रॉल बोलिए या आपके टर्नओवर ऑफ सेल परचेस का भी है, उसके अंदर में भी टीडीएस और टीसीएस की प्रोविजन लाई। उम्मीद ये थी कि ये कोविड पेंडेमिक के चलते हुए शायद इसको पोस्टपोन करेंगे और नोटिफिकेशन अगले 1 अप्रैल से आएगा, ऐसी इच्छा ऐसा लग रहा था। पर गवर्नमेंट ने भी देखा कि हमारी रेवेन्यू कम होते जा रहा है और टीडीएस और टीसीएस ऐसी चीज है कि वो आराम से आपको कलेक्शन हो जाता है, सामने वाले को दर्द भी नहीं होता है पेमेंट करते समय और पेमेंट का कलेक्शन होते चले जाता है। तो इस प्रोविजन को आप लगाओ, इसको यूटिलाइज करो और इसको अप्लीकेबल करके, और 1 अक्टूबर से काफी सारी प्रोविजंस अप्लीकेबल कर दी है। ये 1 अक्टूबर से प्रोविजन अप्लीकेबल कर दी है। अब ये नोटिफिकेशन करीब 8 दिन पहले ही आया है और ये सोचा गया है कि भाई जल्द से जल्द इसको लोगों को बताया जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 सितंबर से चालू होगा, 1 अक्टूबर से चालू होगा, तो सबको मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और मोर पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियलिस्ट को अकाउंटेंट को जानकारी होवे वहां तक तो ठीक है, पर इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत सारी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भले ही वो काम नहीं करता होगा, खुद अपने हाथ से टीडीएस नहीं करता होगा, पर उसको अपने स्टाफ से रिपोर्टिंग तो लेनी है कि आपने टीडीएस किया नहीं है, टीसीएस किया है नहीं किया। तो ये प्रोविजन की एक बेसिक जानकारी देने के लिए और प्रोविजन के बारे में पूरा देख के और आपका डिस्कशन, आपके शंका का समाधान करने के लिए हमारे पास आज श्री नरेश जी जखोटिया हमारे बीआई के ट्रेजरर है और रिनोन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और काफी कुछ लिखते रहते हैं। उनका हर सोमवार को आप हितवाद में कॉलम देखेंगे टैक्स टॉक के बारे में, और कई सालों से वो करते आ रहे हैं। तो ऐसे वक्ता हमारे को प्राप्त हुए हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए आगे का कार्रवाई के लिए सचिन को देता हूँ। सचिन आगे की कार्रवाई चालू करें। थैंक यू सो मच सर। तो नए नए प्रोविजंस, नई नई कंसेप्ट्स, लोग हर बार बिजनेस में एक नया नया चैलेंज, दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज फीलिंग और ये दिखता है। अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंडस्ट्रीज ने कैसे तैयार होना चाहिए, दिस इज व्हाट आवर ओन सीए नरेश जाखोटिया जी इज गोइंग टू टेल अस। नरेश भैया, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आपको सुनने के लिए। ऑलमोस्ट महाराष्ट्र तो पूरा यहाँ पर है, बिलासपुर भी है, एमपी भी है, बॉम्बे है, नासिक है, यवतमाल है, काफी जगह से लोग आए, जहाँ जहाँ हम समझ सकते उतने दिख रहे हैं। तो नरेश भैया, विदाउट टेकिंग एनी टाइम, प्लीज start your deliberations on this important subject. Thank you, Sachin. The dynamic young president of VIS, Suresh Rathi, the chairman of VI Tax and Corporate Law Forum, the past chairman of ICA, Sri Ashokji Chandak. It's always pleasure to hear to you, sir. And जब आप बोलते हो तो लगता है कि I should keep on listening to you rather than speaking anything on this topic. Yeah, it's always pleasure to listen to you. A person who has conceptualized the concept of various forum in VIA, past president of VIA, Sri Praveen Tapadia, a dynamic and a very learned CA Mahendraji Jain. And I am just naming the person, few of the person I have found in the Zoom list who are participating in this program, so that this session could be very interactive at the end. So I am just naming few names: Sachin Jadodia, the Tax Forum member, Jethalal ji Rukhiana, our auditor Parikshit ji Loya, my partner Sharad Thauli ji, Govind ji Mantri ji, a very learned person, Satish Sada sir, Girish Devdar ji, Damodar ji Sada, and all of you friends. I am very fortunate to have all of you here for this program in this Zoom. जब ये प्रोग्राम सैटरडे को डिजाइन हुआ था कि ये प्रोग्राम लेते हैं, एंड इंस्टली वी हैव प्लान फॉर दिस प्रोग्राम। एक पुरानी जैविश कहावत है, आगे बढ़ाते हैं ना, एक पुरानी जैविश कहावत है कि टैक्स ग्रोस विदाउट रेन, यानी बिना बरसात के भी टैक्स लगातार पड़ता है।
ये to be very honest, Jewish prop है, but I don't believe it's very true. In India, in Indian context at least, the taxes grow with the trial and error at the cost of the taxpayer. All the शायद कभी लगता है कि लेबोरेटरी में भी एनिमल्स पे उतने टेस्टिंग नहीं होती है जितना टैक्सपेयर के साथ इंडियन गवर्नमेंट एट टाइम्स कर लेती है. कभी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लाती है, फिर अचानक निकाल देती है. बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लाया, वो भी हटा दिया. डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लाया, हटा दिया. उसको इंस्टॉलमेंट में हटाना चालू किया. तो कई बार लगता है कि आदमी बिजनेस करे या इसको अपडेट करते रहे. शायद कई बार लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं थी. व्हाई नॉट अ मैच्योर डिसीजन इज टेकन एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन इटसेल्फ. यूएसए में एक कॉन्सेप्ट है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. मीन जब भी कोई टैक्स आ रहा है तो उसके पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लिए जाए एंड देन द लॉ इज एनफोर्स्ड. That is the best system of implementing a law. No law is good law unless until it is after due representation from the taxpayer. Everyone taxes are the blood of the government, lifeline of the government. No government can survive without the taxes. But the bad taxes are going to affect the revenue also. एक हमेशा वो डाउट आता है जब भी बजट के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो आता है कि हमेशा वो बजट में एकदम अचानक आता है फाइनेंस मिनिस्टर कम टू द पार्लियामेंट, बैग लेके आते हैं, अचानक बोलना चालू करते हैं जो शायद अपने सपने में भी कभी वो प्रोविजन नहीं सुने होंगे, उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है. आई डोंट नो व्हाई सो सीक्रेट अबाउट द बजट डॉक्यूमेंट्स. व्हाई इट इज केप्ट सो सीक्रेट. अगर ये इस टाइप के प्रोविजन लाना है, जैसे टीसीएस का भी प्रोविजन आया है, दे शुड हैव केप्ट इन द पब्लिक डोमेन. लोगों के पास में छोड़ देते, आराम से डिस्कशन होता है, 6 महीने साल भर डिस्कशन होता है, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन हो जाता है ऑन दोनों साइड से. तो शायद इसका बेटर वर्जन कुड हैव बीन देयर. और शायद ऐसा भी होता है कि ये जो नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया दैट माइट नॉट हैव सीन द लाइट ऑफ द डे आल्सो, अगर ये ड्यू डिस्कशन इस पार्ट पे हो जाता था. तो अब अगर आता है कि भैया टैक्सेस तो गवर्नमेंट के नहीं तो भी बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दे डोंट नीड एनी न्यू इनकम टैक्स लॉ एज सच. टैक्स विल ग्रो ऑटोमेटिकली विद द अवेलेबल डाटाबेस ऑफ द गवर्नमेंट. They have enough data with them. They are already collecting the data. सिर्फ उसी को एनफोर्स करते हैं तो भी काम हो जाएगा, rather than new and 3 crores. अगर हम इसको पुराने पार्ट से कंपेयर करें, I'm just taking few minutes to brief up the background with which the law is being inserted, so that it will be easy for me to explain afterward. अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे गवर्नमेंट का, हर साल बढ़ा है. लेकिन आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट गवर्नमेंट ने हमेशा बढ़ाई है, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. टैक्स रेट हमेशा कम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद भी रेवेन्यू बढ़ रहा है. ये नेट टैक्सेस के कारण रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है. इट्स अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. क्वेश्चन आता है सिर्फ जितना ऑलरेडी लॉ है उसी को अगर प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं बेटर रेवेन्यू आएंगे, और टैक्सपेयर को ज्यादा फ्रीडम दे दी जाए, एग्जिस्टिंग डाटाबेस मोबिलाइज कर लिया जाए, दैट विल यील्ड बेटर रेवेन्यू. एक और चीज हमेशा ख्याल में आती है, जब भी कोई नए लॉ आता है उसमें सिर्फ बेसिकली सिंगल माइंडेड आईज जो होती है, आंख जो होती है, वो सिर्फ एक ही जगह पे होती है, वो रेवेन्यू पे होती है. एक फैक्टर जो हमेशा मिसिंग होता है वो रहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड कन्वीनियंस टू द टैक्सपेयर. दैट फैक्ट ऑलवेज नीड टू बी कंसीडर्ड. इट शुड बी द प्रायोरिटी. जैसे कस्टमर को जो ट्रीट किया जाता है वही ट्रीटमेंट टैक्सपेयर को मिलना चाहिए. इट नेवर हैपेंस. अगर वैसा थॉट प्रोसेस में 1% भी अगर गवर्नमेंट के दिमाग में रहता था तो इस टाइप के प्रोविजन नहीं आ सकते थे. अननेसेसरीली जो कंप्लायंस बर्डन टैक्सपेयर पे डाल दिया जाएगा, दैट इज टोटली ओवरलुक. मैं जब ये प्रोग्राम अपना होगा, बीच बीच में जब भी डिस्कशन आएगा, आई कैन सजेस्ट कि इसमें क्या करने से काम आसान हो सकता था. गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू चाहिए था उतना रेवेन्यू आ जाता था विदाउट एनी हार्म टू द टैक्सपेयर, विदाउट मच कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्सपेयर. एक वो सिर्फ पहले जब कभी प्रोविजन आता था, स्टैंडर्ड सीरीज ऑल्सो देयर, पविता पड़िया जी सॉरी प्रेसिडेंट सीरीज देयर. पहले जब कोई प्रोविजन आता था, आई स्टिल रिमेंबर जब हम लोग पढ़ते थे, कोई प्रोविजन आया था तो स्ट्राइक होता था, अपोजिशन हो जाता था, मार्केट बंद हो जाता था. लेकिन पिछले का 10 साल में देखेंगे नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा. पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग, और अल्टीमेटली देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑन द अदर साइड. दे डू व्हाट दे विश टू डू एंड दे विल बी डूइंग लाइक दैट ओनली. पार्लियामेंट में भी जितना फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए था उतना डिस्कशन ही नहीं होता है. सो वी हैव द लॉ लाइक दिस. अगर कोई मुझे कहा ये प्रोविजन कैसा है, आई विल से दैट इससे बेकार प्रोविजन नहीं हो सकता था कानून में, जिसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल
जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, while introducing this section, उसमें बोला गया why this provision is needed. The basic aim was to widen the tax base and to deepen the tax base. यानी जो existing taxpayer है उससे number of taxpayer ज्यादा बढ़ जाएंगे और जितना टैक्स existing taxpayer पे कर रहे हैं उससे ज्यादा taxpayer टैक्स दे पाएंगे. अब let's see whether it will be really right or it will not be like that. Government want tax collection from every sale bill. Now, अब उसका डाटा जमा करना चाहते थे गवर्नमेंट. That was the only aim that has been mentioned in the explanatory memorandum. लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो डाटा गवर्नमेंट अभी कलेक्ट कर रही है बायर का, वो डाटा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑलरेडी आ ही रहा है. जीएसटी इज नॉट ओनली कलेक्टिंग द सेल डाटा, फील्ड वाइज सेल डाटा आता है, डेट वाइज सेल डाटा आता है, एक एक पार्टी का डाटा गवर्नमेंट ऑलरेडी है. और जीएसटी में तो लिमिट 40 लाख रुपए की है मैक्सिमम. पिछले बार तो 20 लाख की ही लिमिट थी. तो 40 लाख के ऊपर का हर पर्सन का जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है उनको. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास में हर किसी का जीएसटी नंबर भी है और एक एक सेलर और बायर का डिटेल इज ऑलरेडी देयर विद द गवर्नमेंट. तो ये क्या पर्पस सर्व करेगा? हाउ द टैक्स पेयर बेस विल बी डिपेंड एंड वाइडन. जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट and indirect GST department has already signed a pact by virtue of which they can share the information with each other when they are having enough information at their disposal. Why this new system is needed? It doesn't make any sense. Original purpose यहाँ तक समझ में आता था कि business to business transaction already government database में आ रही है through GST department. Then why this reporting is required by this way? The only logical things could have been that B2B transaction could have been excluded. Only B2C, business to customer transactions, that should have been tapped in this new TCS mechanism. Probably would have served a better purpose. B2B transaction chunki is already in the database of the government. By imposing this TCS, no additional purpose is going to be served. और at the most होना क्या है? आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो buyer is automatically able to get the credit of that tax. Then there is no gain to the revenue. Ultimately revenue तो बाय चांस बिल्कुल भी नहीं होना है गवर्नमेंट का, सिर्फ उसका क्रेडिट मिलना है. तो पर्पस तो वही कोई पर्पस सब नहीं होगा नए टीसीएस प्रोविजन से. इट्स लाइक पिकिंग एंड डिगिंग द सेम टैक्सपेयर. एक टैक्सपेयर को पकड़ा है, उसी को मार मार के बार बार अलग अलग कंप्लायंसेस कराने का काम होगा. इससे ज्यादा कुछ भी पार्ट नहीं हो पाएगा. मेरा आई कीप गोइंग टू द नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स आल्सो फॉर सम लेक्चर्स. तो कई बार वहां पे भी मेरे डिस्कशन है. कुछ टॉप लॉ मेकर्स आर ऑलवेज एट टाइम्स देयर. जेठालाल जी रुखियाना के भी कुछ पहचान के थे, उनसे भी कभी डिस्कशन हुआ. तो कहना आया कि गवर्नमेंट वांट अ रेवेन्यू. एडवांस टैक्स से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो क्वार्टरली बेसिस पे आता है. बाय टीसीएस देखे ना रेगुलर टैक्स फ्लो आएगा हर महीने में गवर्नमेंट के पास में डाटाबेस में. मैं कर लूंगा यहाँ से. हर महीने बाय वे ऑफ टीसीएस गवर्नमेंट के पास एडिशनल डाटा आना, रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा. दैट इज द लॉजिक दैट दे हैव गिवन. तो अगर मंथली रेवेन्यू गवर्नमेंट का टारगेट था लेना, देन स्टिल दिस इतने बड़े कंप्लायंस बर्डन के साथ में ये लॉ लाना इट्स नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो. अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक ही चीज कर देती, आपका जितना मंथली सेल्स है उसमें आप 0.1% टोटल सेल्स का एडवांस टैक्स पे कर दीजिए. वो क्वार्टरली टीडीएस एडवांस टैक्स की जब लायबिलिटी वर्कआउट करते हैं तब या तो उस समय आप उसको एडजस्ट कर लीजिए या उसके अलावा ये कर लीजिए. इट वुड हैव बीन बेटर. एट द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बर्डन इस तरीके की लेवी इंपोज करना इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेटरी और कहीं पे भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा. अल्टरनेटिवली एक और चीज हो सकती थी, अगर गवर्नमेंट को जीएसटी डिपार्टमेंट से अगर डाटा नहीं लेना था तो what they could have done is simply introduced an additional requirement in the statement of financial transactions. ये statement of financial transaction एक ऐसा statement है जिसमें हर आदमी को यानी जो बड़ी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होती है जिनके पास से उसका स्टेटमेंट फाइल करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. जैसे किसी पार्टी से कैश की ट्रांजेक्शंस हो गई है, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को डाटा देना होता है, तो हर एवरी सेलर जो 10 करोड़ से ऊपर का काम करता है उसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में एक कॉलम आ जाता है कि दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. साल में एक ही बार फाइल करना पड़ता था और ज्यादा कंप्लायंस बर्डन भी नहीं पड़ता था. बट देन
नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज डन। तो सिर्फ एक ही लॉजिक जो समझ में आता है मुझे, दे वांटेड अ मंथली रेवेन्यू एंड फॉर दैट दे हैव ब्रॉट दिस प्रोविजन। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है जिसके कारण ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है। इन शॉर्ट सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ना तो वाइडनिंग होनी है ना डिपनिंग होना है टैक्स बेस का, बट एक चीज जरूरी होंगी, अनइंटेंडेड लिटिगेशंस एंड डिस्प्यूट्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड बाय दिस। आई विल कवर इन माय नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है फिर भी कंप्लायंस बर्डन आता है तो लॉजिक समझ में आता था, वी वुड अप्रिशिएट, वी वुड एक्सेप्टेड द न्यू कंप्लायंस बर्डन, बट ना तो रेवेन्यू आना है और ना कोई टैक्स बेस वाइडन होना है, डिपन होना है, एंड देन अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन इज गोइंग टू एड द बर्डन ऑन द टैक्स पेयर। वो आता है कि हमेशा ईज ऑफ बिजनेस, आई वुड से इट्स नॉट ईज ऑफ बिजनेस, इट्स अ डिजीज ऑफ बिजनेस, इट इज गोइंग टू एड द कॉम्प्लिकेशंस ओनली। और पता नहीं इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, 20 साल से 25 साल से एक ही एक्सपीरियंस रहा है, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि वी वांट द ईज ऑफ बिजनेस, वी विल गिव द ईज ऑफ बिजनेस, उस समय बी प्रिपेयर्ड कि कोई ना कोई नया कॉम्प्लिकेशंस एड ऑन करने वाले हैं। यू मे बी नोइंग, सबसे ज्यादा बात होती चिदम्बरम के समय बात होती थी, उसके बाद जसवंत सिन्हा वगैरह के समय बात हुई, जेटली जी के समय बात हुई, दिस फाइनेंस मिनिस्टर की बात हुई, हमेशा कमिटी बनती है, नए नए लोग बनते हैं और हर बार हर साल प्रोविजन में कुछ ना कुछ ऐसा एड ऑन कर देता है बर्डन जिससे वो ईज नहीं डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं और सिर्फ इनकॉन्वीनियंस बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता है इससे ज्यादा। वो आई स्टिल रिमेम्बर एक कहना आता है, चाणक्य नीति का पार्ट था कि टैक्स तो वैसे ही कलेक्ट किया जाए जैसे लाइक दी हनी, बी कलेक्ट दी हनी फ्रॉम दी फ्लावर, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा फ्लावर ही डैमेज करके दे वांट टू कलेक्ट दैट, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अच्छा, जितने भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन जाते हैं, नो वन फाइंड्स अ रिस्पेक्टेबल प्लेस, या कभी भी उनको रिप्लाई भी नहीं आता है कि या वी आर कंसिडरिंग, वी हैव डिस्कस ऑन दिस, वी डोंट फाइंड इट रिलेवेंट। नन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन आर रिप्लाइड, एवर रिप्लाइड। और क्या होता है, एक बार प्रोविजन जब आ जाता है, लोगों का आया कहना कि वी नीड टू रिप्रेजेंट, जैसे हम लास्ट वीक में बात कर रहे थे काफी जगह से, तो आया कि एक रिप्रेजेंटेशन दो वीआई से कि दिस प्रपोजल शुड बी रोल्ड बैक, ये स्क्रैप करते, ये कोई रेलिवेंट नहीं है। क्या होता है, जब बजट एक बार बना लेते हैं, एक प्रोविजन आ जाता है, उसके बाद वो लॉ नहीं रहता, वो उनका ईगो हो जाता है, तो वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनका ईगो कभी भी डाउन नहीं हो सकता है और वो देन नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग। अब जैसे लॉ आ गया तो दे वोंट एक्सेप्ट कि अब स्क्रैप कर दो, अब सिर्फ यही कर सकते हैं कि सजेशन कैन बी गिवन कि उसको कैसा इजी कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि व्हाट अबाउट दिस टीसीएस प्रोविजन, देखिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये दिस इज नॉट द ओनली प्रोविजन फॉर दिस टाइम, इसके पहले भी टीसीएस प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रादर टीसीएस एंड टीडीएस दो टाइप के प्रोविजन है। एम है कि जब जिन लोगों को जैसे जैसे इनकम होती है उसी पॉइंट पे आप टैक्स का कलेक्शन कर लिया जाए, यानी इंस्टॉलमेंट में रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। सर्विस सेक्टर से अगर आते हैं, कोई प्रोफेशनल फीस का पार्ट आता है, कोई सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, वहाँ टीडीएस प्रोविजन है। जहाँ सेल वाला पार्ट आता है वहां पे टीडीएस प्रोविजन ही है, वहाँ टीसीएस प्रोविजन अप्लाई होते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। पर्पस एक ही है, वो ट्रांजेक्शन में कुछ अमाउंट टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाए। सर्विस एलिमेंट में टीडीएस में और सेल में टीसीएस में ये प्रोविजन ऑपरेट करता है। एज ऑफ नाउ टीसीएस प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर। अभी फिलहाल अल्कोहल, तेंदुल्यूज, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप, कोल, इग्नाइट, आयरन ओर, these are the items on which TCS is already applicable. Means TCS is required to be collected, it is already there for these items. In few years back, parking lot, toll plaza and mining and quarrying was also brought in the tax net. 2 years back, motor vehicle was brought into the net of TCS. Means धीरे धीरे अगर देखेंगे TDS का नेट पूरा वाइडन कर दिया, अब TCS का नेट वाइडन हो रहा है, यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो इधर टीडीएस अप्लाई होगा और टीसीएस अप्लाई होगा, यानी कोई ना कोई फॉर्म में डायरेक्ट टैक्स का रूल इज गोइंग टू बी देयर। दिस इज व्हाट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक स्पेसिफिक था टीसीएस, कुछ पर्टिकुलर चीजों पे अप्लाई होता था, अब बाय फ्रॉम दिस ईयर ऑलमोस्ट सभी चीजों में टीसीएस प्रोविजन अप्लाई कर दिया गया। लास्ट ईयर जब मोटर व्हीकल का पे टीसीएस लाया गया था, उस समय ये क्लियर था कि द नेट इज गोइंग टू बी वाइडन, अब फर्दर उसमें एड ऑन होंगे। एंड फाइनली इस बजट में वही किया गया, TCS has been included on all the items,
यानी जो पुराने आइटम्स थे उसके अलावा अब कोई भी आइटम ऐसा नहीं बचा है जहां टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक ही है, जिनको पहले से टीसीएस अप्लाई होता है उनको दे विल नॉट बी कवर्ड बाय न्यू टीसीएस प्रोविजन। यानी कोल डीलर हो गए, स्क्रैप डीलर हो गए, वो ऑलरेडी जो टीसीएस भर रहे थे उनको नया टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे ही कोई पुरानी ट्रांजेक्शन या कोई ट्रांजेक्शन में टीडीएस अप्लाई होता है वहां पे भी टीसीएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टीसीएस, नया टीसीएस जो अप्लीकेबल है ये सिर्फ वही अप्लाई होगा जहां पुराना टीसीएस प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने जितने टीसीएस के प्रोविजन थे वो उस आइटम में थे जहां दी पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन वाज देयर। अल्कोहल, तेंदुल यूज, टिम्बर, ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज फॉर्म करती थी। तो टीसीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसका कॉन्सेप्ट था जहां पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन है वो वहां पे टीसीएस का कॉन्सेप्ट से चालू किया गया था, टैक्स कलेक्शन एक्ट सोच चालू किया था। लेकिन इस साल जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी जीएसटी नेट में ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, दे हैव आल्सो बीन ब्रॉट इनटू द टैक्स नेट and it has been drastically increased with this year. अब ड्रास्टिकली इंक्रीज का मतलब है लोगों का कहना है कि 10 करोड़ के सेल पे लगेगा या बायर 50 लाख से ऊपर का सेल करता बाय करता है तो टीसीएस प्रोविजन आएगा। लेट मी टेल यू, कोई भी चीज की बिगिनिंग ऐसी ही होती है। जब भी कोई बजट नया प्रपोजल आता है ना तो बड़े स्केल से चालू होता है, धीरे 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 उसको कम करके लोकल लो लेवल पे लेके आ जाते हैं। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू टीसीएस प्रोविजन। 10 करोड़ के सेलर से चालू किया है, इन ईयर्स टू कम वो 10 करोड़ की लिमिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी और वो धीरे धीरे टैक्स ऑडिट की लिमिट से अलाइन कर दिया जाएगा और 50 लाख की जो बायर की लिमिट है ये भी कम हो जाएंगी आने वाले समय में। सो एक ये भूल जाइए कि भैया मेरे को क्या फर्क पड़ता है अगर टीसीएस आ गया तो मैं तो इफेक्ट नहीं हो रहा हूं या मेरे पे तो लाइबिलिटी नहीं आती है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, इन ईयर्स टू कम द नेट इज गोइंग टू बी वाइडन। हम लोग अब टीसीएस के प्रोविजन पूरा डिस्कस करते हैं विद दिस बैकग्राउंड। ठीक है, टीसीएस इज अप्लीकेबल, जो नया प्रोविजन है इट्स अप्लीकेबल ओनली ऑन द सेलर ऑफ गुड्स। यानी पहले तो सेलर पे अप्लाई होगा जिसको टैक्स कलेक्ट करना है एंड गुड्स पे अप्लाई होगा। अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो वो टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इन शॉर्ट, सर्विस इंडस्ट्रीज इज आउटसाइड प्रोविजन। ठीक है, मेरे को आई नो लॉट मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर ऑन ईच एंड एवरी पार्ट दैट आई एम डिस्कसिंग। In my next slide, I will cover all the parts, most of the parts that may be there in your mind. At the end of the session, we will have a question answer if anything is left. But probably I'll be covering everything that you must be thinking on this part. So sale of service is not covered. It's only the sale of the good that is liable for this. Not all the sellers are liable for TCS. Only those sellers whose turnover is more than rupees 10 CR is liable for TCS. अच्छा, 10 years कौन से साल का? 10 years of the last preceding year. यानी अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है then TCS provision will be applicable. Otherwise this TCS provision will not be applicable. This TCS is applicable to all the categories of person. प्रोपर्टी फॉर्म रहे, पार्टनरशिप फॉर्म रहे, कंपनी रहे, ट्रस्ट रहे, एनीथिंग, whosoever is the seller, whosoever is selling anything, TCS provision is applicable. Whether the seller is a trader, manufacturer, or processing agent, or whatsoever it may be, this TCS provision is applicable. What if a person has newly started a business? Since a person who has newly started a business, last year turnover will not be there at all. So TCS provision will not be applicable for a person who is newly starting a business. If the business started in this year, TCS provision will not be applicable. Means each and every year a person needs to verify whether the TCS provision is applicable or TCS provision is not applicable. Right? It could happen that this year TCS provision is applicable to me, next year TCS provision may not be applicable to me. It could happen that way. So benchmark is last year turnover need to be checked before deciding whether the TCS provision is applicable or TCS provision is not applicable. काम नहीं कर रहा आपका वहां से, आप वहां से हटाते, आपके पास में अलग ले लीजिए एडमिशन आपके मोबाइल से।
या अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया अब टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ का टर्नओवर कैसे काउंट किया जाएगा। मेरा पिछले साल का सेल था 9 करोड़ रुपीज एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज 2 करोड़ रुपीज, वेदर आई विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द टीसीएस प्रोविजन। वर्ड यूज किया है टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस एसेट ऑफ द सेलर इफ इट एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़। अगर उसकी इनकम बिजनेस इनकम है, रिलेटेड टू बिजनेस है, कोई भी इनकम हो, फिर पैकिंग चार्ज हो जाए, फेट आ जाए, डिस्काउंट हो जाए, ऑल दिस रिसिप्ट इज एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़, देन टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन कोई रिसिप्ट ऐसी है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट नहीं है, which will be offered for taxation under date income from other source, then it will not be considered. In short, अगर इन नॉर्मल कोर्स अगर देखा जाए, टोटल क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाए, सेल्स, डिस्काउंट, इनकम, रिसीव्स, whatsoever it may be, if it exceeds 10 crores, then the TCS provision will be applicable to such seller. Now, seller we have cleared who are covered by this TCS provision. The sellers above turnover of rupees 10 crores in the last year. Now, which buyers are covered? Not all the buyers are covered. Only those buyers from whom the seller is receiving more than rupees 50 lakh during the year, they will be covered by this. अगर किसी से 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट ही नहीं है तो टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर मेरी किसी पार्टी से ट्रांजैक्शन में साल का 20-30 लाख 40 लाख ही आ रहा है, देन टीसीएस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। जस्ट जैसे चेयरमैन सर ने, प्रेसिडेंट सर ने शुरुआत में ही कहा, इट्स नॉट ऑन द सेल, इट्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ मनी। जिस मोमेंट पे पैसा आ रहा है उस मोमेंट पे टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। And now, the most important part, TCS is applicable only on the amount exceeding rupees 50 lakh. अगर किसी पार्टी से 51 lakhs आ रहा है, then TCS will be applicable only on rupees 1 lakh and not on the entire 51 lakh. Amount exceeding 51 lakh will be liable for TCS. There is a threshold limit of rupees 50 lakh as far as this TCS provision is concerned. अब it could happen that मैंने किसी पार्टी को सेल किया 1 करोड़ रुपए का, मुझे उससे अमाउंट है 48 लाख है सेल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में, मैंने उसको ब्याज से भी रकम दी थी और उसके अगेंस्ट में मेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए ब्याज का आ रहा है। तो वेदर टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल इन सच केस, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सेल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में जो रिसिप्ट आई है, इफ इट एक्सीड्स 50 लाख रुपीज, देन ओनली टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन में वर्ड यूजेस सच अमाउंट एज अगेंस्ट द सेल कंसिडरेशन मींस जनरल अमाउंट जो नॉट अगेंस्ट द सेल कंसिडरेशन विल नॉट बी लायबल फॉर टीसीएस। बट एक तो हो गया कि जो बायर्स का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर, रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर की जिनसे हो रही है, ओनली दोज बायर्स आर लायबल फॉर टीसीएस। सम बायर्स आर एक्सक्लूडेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ माल देते हो, स्टेट गवर्नमेंट को कोई माल दे रहे हैं, एम्बेसी को, हाई कमीशन को, कंसुलेट को, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन को, लोकल अथॉरिटी को, TCS is not liable. Even export of goods is also not liable for TCS. अगर कोई ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी TDS या TCS लाइबिलिटी आ रही है, that will not be subject to the new TCS provision. For example, मैंने मेरी फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का काम दिया किसी को, अब वो 1 करोड़ रुपए का ठेका दिया, 1 करोड़ का पेमेंट हो रहा है हम दोनों के बीच में, ट्रांजेक्शन भी 1-2 करोड़ के, बट चूंकि कॉन्ट्रैक्टरशिप इज कवर्ड बाय TDS प्रोविजन अंडर सेक्शन 194C, 190, this TCS provision will not be applicable. Question: while dealing with the PSU, 100% owned by the central government or the state government, whether the TCS provision will be applicable? No. TCS provision will be applicable. Only central government, state government are excluded. PSUs are not central government as such directly or state government as such. So any transaction with the PSU will be subject to the TCS. The rate of TCS. The only best point in as far as this TCS provision is concerned, the rate of tax is kept at a very minimal level. 0.1% is only liable for TCS. यानी 1 करोड़ का अगर माल देता हूँ तो 10,000 रुपए ही सिर्फ TCS करना होता है, और वो जो 0.1% है, that has also been reduced by 25%. Means 0.075% is the amount of TCS that is applicable till 31st March 2021. After 31st March 2021, 0.1% will be the amount of TCS. अब फिर एक और चीज आती है कि ये 0.1% और 0.075% is the normal rate
if the PAN or Aadhaar of the buyer is available, if the PAN or Aadhaar, any of the document is, any of the number is not available with the seller, then TCS rate will be 1%. अच्छा, एक कंफ्यूजन है कि तो TCS रेट क्या 25% कम होकर 0.75% हो जाएगा? नो, इट्स स्ट्रेट वे 1%. अगर पैन आधार है then only 25% concession can be given, otherwise no concession will be available. अब अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, विद पैन 0.1% है और विदाउट पैन आधार 10 टाइम्स ज्यादा है, 1% आ जाता है सीधा, यानी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है इफ द पैन एंड आधार इज नॉट अवेलेबल. बट बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा केस होगा जहाँ पे पैन या आधार ना मिले, क्योंकि 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो जीएसटी लगना है. सामने वाली पार्टी इज गोइंग टू टेक दी अवेल दी जीएसटी. एक पार्टी से काम हो रहा है तो उसका पैन और आधार तो उनका होता ही है. ई-वे बिल एंड न्यू सिस्टम्स आर in place. So obviously in majority of the cases it will be 0.1% or 0.75% only that is going to be there. अब जो नॉर्मल टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस है इनकम टैक्स एक्ट में टिल डेट, जिनसे हम लोग अभी तक अकस्टम्ड है, वो सिस्टम है कि टीसीएस या टीडीएस की लायबिलिटी आती है एट द टाइम ऑफ डेबिट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. यानी आपने बिल कर दिया तब टीसीएस लेना, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, या जब पेमेंट आ जाता है एडवांस में तब करना होता है. लेकिन जो नया सेक्शन आया है इसमें द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स अगर कोई है तो वो ये है कि TCS is payable at the time of receipt of money. I know lot many people will have a question कि हम लोग इसको बिलिंग पे अगर पे करना चाहते हैं तो can we do that? I will cover it in the next part of the presentation. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे that I will cover up. लेकिन ये सेक्शन जो प्रोवाइड करता है the TCS liability is going to be there at the time of receipt of money from the buyer, when not at the time of sale of money. Means आदमी को लीगली अगर टेक्निकली पूरे सेक्शन को कंप्लाई करना है तो उनको ट्रैक करना है एक एक पेमेंट को. ठीक है, यानी पेमेंट जिस मोमेंट में 50 लाख से ऊपर हो जाता है उस मोमेंट पे आपको टीसीएस करना है. इसका जो फर्दर पार्ट है रिसिप्ट ऑफ मनी और अल्टरनेटिव और हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दिस सिस्टम, आई विल कवर दैट पार्ट फ्यू मिनट्स लेटर. बट बिफोर दैट अब क्वेश्चन आता है कौन से अमाउंट पे टीसीएस करना है. मैंने 1 करोड़ का माल खरीदा है कोई फैक्ट्री से, 18 लाख उन्होंने जीएसटी लगाया, 1 करोड़ 18 लाख का माल मुझे दिया गया. ठीक है, मैंने 1 करोड़ 18 लाख का पेमेंट देता हूँ, तो टीसीएस अमाउंट मुझे 1 करोड़ पे करना है या 18 लाख पे करना है. नॉर्मल प्रिजम्पशन है कि टैक्स पे टैक्स नहीं लग सकता है. ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रिजम्पशन या लॉजिकल चीजें ऐसी लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन लॉ और लॉजिक का कोई आपस में संबंध भी नहीं होता है बिल्कुल भी. इट डजंट गो हैंड इन हैंड, बोथ आर स्ट्रेंजर. जो नया टीसीएस प्रोविजन है इस केस में आपको 1 करोड़ 18 लाख पे टीसीएस करना है, ना कि 1 करोड़ पे. इट मे साउंड इलॉजिकल टू मोस्ट ऑफ यू, बट दिस इज द फैक्ट कि 1 करोड़ 18 लाख पे करना है. क्या हुआ, सीबीटीटी ने अगर टीडीएस की जब पार्ट आती है, अगर मैं किसी को बिल देता हूँ, मेरी प्रोफेशनल फीस का बिल देता हूँ, 5 लाख का बिल देता हूँ, 18% जीएसटी लगाता हूँ, 5,90,000 का बिल देता हूँ उसको टोटल, तो मेरे को जो टीडीएस करना होता है वो 5 लाख पे करना होता है, ना कि 5,90,000 पे. क्योंकि सीबीटीटी भी मानता है टीडीएस में जो जीएसटी जब आप बिलिंग करते हो, इट्स नॉट योर इनकम, यू आर कलेक्टिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो सीबीटीटी सर्कुलर इज देयर कि कोई भी अगर टीडीएस के प्रोविजन जो नॉर्मल है उसमें टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द बेसिक कंपोनेंट एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ जीएसटी. ये टीडीएस में सीबीटीटी मानती है. बट व्हेन इट कम्स टू टीसीएस, द सीबीटीटी डोंट एक्सेप्ट दिस. वहां पे वर्ड जो यूज किया गया है अमाउंट पेबल, तो उन्होंने उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाली और ये मानते हैं कि अमाउंट पेबल इंक्लूड 1 करोड़ 18 लाख रुपया. तो मेरे को पूरे अमाउंट पे 1 करोड़ 18 लाख पे ही टीसीएस करना है. ये सीबीटीटी ने क्लेरिफाई भी किया बाय इश्यूइंग एफएक्यू. अब जो एफएक्यू इश्यू किया था ये बहुत पहले इश्यू किया था पुराने टीसीएस के प्रोविजन से उस रेफरेंस में. अभी अगर आप कंपेयर करेंगे पुराने सेक्शन में नए सेक्शन में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the wording of both the sections. हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी क्वेश्चन पे टीसीएस शुड नॉट हैव बीन देयर, बट unless and until the CBDT come out with a specific clarification, the matter is going to be a disputable matter. Lot of litigations are going to be there as far as this part is concerned. It will be better if CBDT clarified like this. The Madhya Pradesh High Court in 278 ITR 122, they also said that that sale tax,
it was in reference of cell tax only. It has said that the cell tax will always also be subject to TCS, means in favor of the department only the provision was held. कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट थे when I was surfing for that, कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट है जहाँ पे बोला गया था कि दिस टैक्स इज नॉट लाइबल, जीएसटी पे टीसीएस नहीं करना चाहिए. दिस वाज द व्यू मद्रास हाई कोर्ट का था और ऐसे एक दो कर्नाटक हाई कोर्ट का था. द व्यू वाज देयर, बट आई डाउट दैट विल प्रिवेल. इट विल बी बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड जीएसटी पे भी टीसीएस कंप्लाई करें. दैट इज माय सजेशन. नाउ अब एक बड़ा विशेष सर्कल बन जाता है, टैक्स पे टैक्स लगते हैं यहाँ पे. अब आपने माल बेचा 1 करोड़ का, 18 लाख रुपए का आपने जीएसटी लिया और उससे आपको 0.1% की आपने ये भी लेनी है 11,800 रुपए आपसे, आपको टीसीएस भी लेनी है. तो कैन इट जीएसटी डिपार्टमेंट का ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ प्लस 11,800, अब ये टोटल अमाउंट पे 1 करोड़ 11,800 रुपए पे मेरे को 18% जीएसटी दिया जाए. दिस कुड बी द क्वेश्चन. ठीक है, जीएसटी डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी क्लेरिफाइड. Earlier also the clarification was there in the excise regime where they have said that on TCS no indirect tax will be levied. Means GST will be applicable on the basic component of 1 crore and not 1 crore 11,800 as such. So this will be applicable on this part. And no TCS will be there on no GST will be there on TCS component as such. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये टीसीएस का जो प्रोविजन है ये आया है, उसको ट्रिगर होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी. सेक्शन में बोला गया है इफ यू रिसीव मोर देन ₹50 लाख इन अ ईयर फ्रॉम अ बायर, टीसीएस विल बी एप्लीकेबल. अब ये प्रोविजन इन द मिडिल ऑफ ईयर आया. ओरिजिनली व्हेन द बजट वाज प्रेजेंटेड दिस प्रोविजन वाज मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल. ड्यू टू कोविड दिस वाज पोस्टपोन्ड टू 1 अक्टूबर 2020. नाउ व्हाट विल हैपन if the person has sold the goods prior to 30 September, okay, and the amount is receivable and the amount is received after 1st October 2020. In short, for example, a person has sold a goods on 30th September, 1 crore goods is sold, and on 1st October the payment is received. Whether TCS will be required? Technically, the liability is triggered at the time of receipt of money. So any amount received after 30th September means from 1st October will be liable for TCS even if the sale is done prior to 1st October. For that matter, अगर आप देखें, आपने एक सेल किया था 10 साल पहले सेल किया था, आज आपको 1 अक्टूबर को वो पार्टी पेमेंट लाके देती है 50 लाख से अगर ज्यादा का अमाउंट है, TCS liability is going to be there. It may sound illogical, but I told you that we have to accept the fact that law and logic don't go hand in hand. The differences are going to be there. And this view is what I'm saying is the correct interpretation of the provision. Yeah. Another question arises कि 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट्स काउंटिंग कैसे होंगी. मेरे को टिल 30 सितंबर 49 lakhs rupees आ चुका था मेरे पास में. On 1st October I am getting 5 lakhs rupees. So whether 50 lakhs will be counted separately from 1st October or it will be total 54 lakhs means amount received prior to 1st October means till 30th September will also be considered is the question. The word used in section is during the year means amount received till 30th September will also be considered for counting the limit of rupees 50 lakhs. Means अगर मेरे को आज 5 लाख रुपए आ रहा है 49 लाख 30 सितंबर तक आ गया तो मेरी टोटल रिसिप्ट आज 54 lakhs हो जाती है. 50 lakhs तक no TCS will be there. On 4 lakhs I will be required to pay the TCS at the applicable rate. The TCS liability is on receipt and not on sale. एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग कवर करते हैं इस प्रोविजन को बेसिकली कि आगे एक 3 अलग अलग केस सिचुएशंस लेते हैं कि टू मेक इट क्लियर कि हाउ दिस TCS प्रोविजन इज गोइंग टू ऑपरेट. केस देयर आर 3 केसेस बिफोर योर स्क्रीन. ठीक है, इन द फर्स्ट केस सेल इज टिल 30 सितंबर इज 35 lakhs. Amount received till 30 September is 25 lakhs and invoice raised after 1st October is 30 lakhs. It is very clear that the moment I raise the invoice after 1st October, TCS will not be applicable. It will be applicable only after I receive the amount. That too after the amount of rupees 50 lakhs. यानी इस केस में देखा जाए मेरा टोटल सेल हुआ 65 lakhs का हुआ है, amount received is 25 lakhs. Means my balance outstanding with that person is rupees 40 lakhs.
राइट। ऑलरेडी 25 लाख आ चुका था मेरे पास में, 25 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट इज लेफ्ट इन दैट केस, तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 25 लाख विल ओनली बी लायबल फॉर टीसीएस। यानी 40 लाख का मेरा बैलेंस बाकी था, 25 लाख का थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिल जाएगा, एंड बैलेंस अमाउंट 15 लाख विल ओनली बी सब्जेक्ट टू टीसीएस, राइट। सेकेंड केस में आते हैं, द सेल was 65 lakhs and receipt was 30 lakhs till 30th September, and after 1st October I was sold a goods of rupees 20 lakhs, means total goods selling was of 85 lakhs, amount received till late till 30th September was 30 lakhs, means outstanding amount was rupees 55 lakhs. 30 lakhs is what they have already given to me, means 20 lakh threshold is left. Okay, so out of 55 lakhs, 20 lakhs will not be subject to TCS, and balance 35 lakhs will be liable for TCS. The third case, the sale was of rupees same, 65 lakhs was the sale amount. I have already received 55 lakhs prior to 30th September, and I have sold after 1st October goods worth rupees 20 lakhs. Means old 65 lakhs, and this year after 30th September 20 lakhs. 85 lakhs was the sale amount, and 55 lakhs is already received. Balance amount is 30 lakhs in this case also. First of all, I have already received 55 lakhs prior to 30th September. Prior to 30th September, TCS provision was not applicable, so no TCS liability will be there on this 55 lakhs. Means on balance 5 lakhs above 50 lakhs will also not be subject to TCS. Whatever I receive afterwards, entire amount will be liable for TCS. In this case, the balance amount is rupees 30 lakhs. 65 plus 20, 85 lakhs is the total sales, 55 lakhs are already issued, 30 lakhs is balance, entire 30 lakhs will be subject to TCS. One of the common questions that is going to be there in all your mind, how to implement this system, whether you should implement it at the point of receipt or you should implement it at the point of sale. I have 3 options, probably 3 mechanisms that could be there for implementation of this new TCS system. The first option could be implement the way this section is saying. Means as soon as they receive the amount, calculate whether the amount is exceeding rupees 50 lakhs or it's not exceeding 50 lakhs. The moment it exceeds 50 lakhs, you pay the tax. But in this case, lot of compliance is going to be there. It could be good. It is acceptable when only there is a limited number of buyers. If you are dealing with 2, 3, 4, 5 persons only, then probably you can implement this system. Otherwise, implementation of this system will be very cumbersome, very difficult to comply with these provisions. अब अगर ये सेक्शन तो बोलता है दिस इज द वे यू शुड डू द टीसीएस, यानी आपने हर समय 50 लाख की मैकेनिज्म चेक करो, 50 लाख रुपए चेक करिए वेदर टर्नओवर 50 लाख से ऊपर की हो चुकी है तो टीसीएस कर लीजिए. अब टीसीएस इन दिस केस कुड बी बाय इश्यूइंग द डेबिट नोट ओनली, क्योंकि सेल का तो पार्ट नहीं होगा इस केस में, it will be by way of debit note, but it will be very difficult to implement. Alternate mechanism too could be there कि जो बहुत सारे बायर्स से डील कर रहे हैं उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि जो भी रिसिप्ट आ रही है 1 अक्टूबर के बाद में आप सब पे 0.1% कलेक्ट कर लीजिए. अब 0.1% बहुत निग्लिजिबल अमाउंट है, 1 करोड़ पे 10,000 होता है और 100 करोड़ के टर्नओवर पे वो अमाउंट सिर्फ 1 लाख का होता है. तो सेकंड ऑप्शन है कि आप जो भी अमाउंट आएगा 1 अक्टूबर में आप उसमें सब में टीसीएस कर लीजिए विदाउट लुकिंग एट कि उसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हुआ या नहीं हुआ. Income tax department is now going to question that it's a compliance better than what they want. You are paying more tax to the government treasury than what is being expected. तो ये एक सिस्टम हो सकता है that can be implemented by some of the taxpayer जो probably compliance burden में नहीं जाना चाहते हैं, easy going life चाहते हैं. This is the best way one can go with. The third option could be there. लेकिन अब क्वेश्चन ही आता है कि आप किसी पार्टी को आप 1 करोड़ का माल बेचते हो, 18 लाख की बिल करते हो, 1 करोड़ 18 लाख का बिल चले जाता है पार्टी के पास में और आप बोलते हो कि मेरे को 11,800 रुपए भी दे दो टीसीएस का, तो फिर क्वेश्चन आएगा दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बिलिंग. फिर क्या होता है हर बार उसको कम्युनिकेट करना विल बी अ टीडियस जॉब, बहुत कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन कुड बी देयर जहां पे टीसीएस कुड बी डन एट द टाइम ऑफ बिलिंग इटसेल्फ, कि आप जब माल बेचे हो 1 अक्टूबर में आप जो भी माल बेचोगे सब पे 0.1% का आप टीसीएस कलेक्ट कर लीजिए और उसको अकाउंटिंग का पार्ट कर दीजिए. सामने वाले पार्टी से पेमेंट आए या ना आए आप 0.1% टैक्स पे कर दीजिए.
अब देखा जाए तो अल्टीमेटली लाख 2 लाख रुपए से 100 करोड़ 200 करोड़ का भी टर्नओवर तो लाख 2 लाख से ऊपर का मैटर नहीं आता है, और बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है ये, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें भी कुछ हर्डल्स है दैट वन नीड टू लीक, एंड आई डिस्परेटली वेटिंग। अब क्या होता है, अगर टैक्स पेयर की तरफ से एक दिन भी लेट हो जाता है तो पेनल्टी फाइन इज गोइंग टू बी देयर, हेफ्टी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से साल के आधा साल निकलने के बाद में अगर वो आईटीआर फॉर्म्स देते हैं, उसकी यूटिलिटी देते हैं, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां कोई फाइन नहीं लगा सकता है। अब ये टीसीएस प्रोविजन अदरवाइज 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो रहा था, और आज तक गवर्नमेंट ने टू कवर अप, टू क्लियर द डाउट्स एक एफएक्यू तो कम से कम रिलीज कर देते हैं कि प्रोबेबली दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस एंड वी आर गिविंग द एफएक्यू। टिल दैट नो एफएक्यू इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, तो नो क्लेरिफिकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय दैट। अगर हम लोग ये बिलिंग सिस्टम में जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूँ अब आपको। व्हाट विल हैपन, आपने माल 30 सितंबर तक 1 करोड़ का माल बेच दिया था, अब आप बिलिंग से 1 अक्टूबर के बाद में आप बिलिंग से टीसीएस कलेक्ट करना चाहते हो, पे करना चाहते हो, लेकिन कुछ पार्ट आपका पुराना भी बिल करेगा 30 सितंबर तक का रहेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा टिल ओल्ड डेट्स आर रिपेड, यानी वो पैसा वापस नहीं आ जाता है, तब तक आपकी लाइबिलिटी वो अमाउंट पे भी आती है, राइट। तो अब कुल मिला के ये इसका इजी इंप्लीमेंटेशन सिस्टम ये हो सकता है कि आप जो भी पार्टी का आपका 50 लाख से ऊपर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 30 सितंबर को, उस सब पे 0.1% भी टीसीएस भर दीजिए आफ्टर दिस फ्रॉम 1 अक्टूबर, आप वो भी टीसीएस भर दीजिए ताकि इट विल बी अलाइन विद द न्यू प्रोविजन। और उस केस में क्या होगा, अगर आप बिलिंग पे टीसीएस दे देते हो, इट विल बी बेटर कंप्लायंस फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द टैक्स पेयर, फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ऑफ द व्यू, जो मेरे डिस्कशन जहां पे भी हुए हैं सबका व्यू है कि हम लोग इसको बिलिंग पे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड आई बिलीव दैट इट विल बी अ बेटर सिस्टम अगर आप बिलिंग पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा अब इस केस में कि अगर आप सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो दैट डिस्काउंट के समय टीसीएस रिवर्स नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि अमाउंट का आप तो वापस क्रेडिट दे ही नहीं सकते। जैसे आप जीएसटी में क्रेडिट नोट दे सकते हैं, टीसीएस में दैट कैन नॉट बी देयर। You need to forget कि डिस्काउंट वाले पार्ट पे to that extent TCS is going to be on the buyer only, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा, डिस्काउंट में रिवर्सल इज नॉट गोइंग टू बी देयर। अब अगर सपोज सीबीडीटी ये क्लियरिफिकेशन नहीं देती है बिलिंग का, तो क्या करना चाहिए? अगर ये कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करते हैं अगर सिस्टम, तो इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। सिर्फ एक ही हीट जो है, अगर 50 लाख से ऊपर के कोई डेटर्स है, उसका 0.1% आप भर दीजिए, so there is nothing to lose on any front. पूरे fully compliance is going to be there with this new provision is concerned. So I would suggest कि बिलिंग पे इसको implement कर दिया जाए, वो ज्यादा बेटर होगा। And I expect कि CBDT जो FAQ sooner or later FAQ आएंगे, मेरे को लगता है 1 अक्टूबर को implement होगा, 2 अक्टूबर तक तो FAQ आ जानी चाहिए गवर्नमेंट की भी, तो उसमें this part will be clarified. We are also giving representation through Weather Businesses Association on this part also. अब आता है, जब भी कोई टैक्स आता है उसके साथ अपने कंप्लायंस बर्डन एडिशनल आ जाते हैं। एक सबसे बड़ा कंप्लायंस बर्डन इज गोइंग टू बी देयर कि आपको हर महीने टीसीएस पे करना है, हर महीने टीसीएस पे करना है आपको। हर महीने कंप्लीट होने के बाद में 7 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। यानी आप अगर अक्टूबर महीने में टीसीएस कलेक्ट करते हो, 7 नवंबर को पे करना पड़ेगा, नवंबर का दिसंबर महीने में पे करना पड़ेगा। यू विल रिक्वायर अ टैक्सेशन अकाउंट नंबर, a number will be required for the compliance of this. Already maximum लोगों के पास में taxation account number is already there, so that can be used for this purpose. फिर इसके बाद हर महीने जो पेमेंट करना है चालान नंबर 281 में पे करना है, एवरी क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न भरना है, एंड विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, और सामने वाली जो पार्टी है उसको टीसीएस सर्टिफिकेट भी इश्यू करने। अब क्वेश्चन आता है कि भैया सर्टिफिकेट इश्यू करने की जरूरत क्या है? 26 ईयर्स में तो गवर्नमेंट के ऑलरेडी वो बायर के पास में रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली चले जाता है। नो, द लॉ इज देयर। अगर आप टीसीएस डाउनलोड नहीं करते हो इनकम टैक्स साइट में, तो क्या होता है, आपने उनको सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया, ये तो पहले क्वेश्चन आता कि दिया या ना दिया। लेकिन अब क्या होता है, आपको सिस्टम से डाउनलोड करना होता है टीसीएस सर्टिफिकेट। अगर आपने डाउनलोड ही नहीं किया, इसका मतलब आपने दिया नहीं है, तो पेनल्टी इज गोइंग टू बी देयर फॉर नॉट इशूइंग द टीसीएस सर्टिफिकेट टू द बायर। यानी आपने डाउनलोड नहीं किया तो पेनल्टी इज गोइंग टू बी इम्पोज। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन जो है, जो मेरे को लग रहा था would be relevant for this session, I will cover that. I will speedily I will cover that part so that we can have a question as a session. We can have an interactive session at the end. एक क्वेश्चन था, अगर XYZ लिमिटेड में 19-20 में 15 करोड़ का माल बेचा
और 20-21 में उसने बिजनेस ही अपना बंद कर दिया, तो वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल, यानी 20-21 में उसका बिजनेस ही नहीं कर रहा है। यस, लास्ट ईयर टर्नओवर इज रिलेवेंट, अगर लास्ट ईयर उसका टर्नओवर 15 करोड़ था, तो इस साल में मेरे को जो भी पेमेंट आएगा 50 लाख से ऊपर कोई बायर से पेमेंट अगर आता है मुझे, तो मुझे टीसीएस करना है। इट डजंट मैटर कि मैंने इस साल बिजनेस बंद कर दिया, मेरा इस साल कोई भी सेल मैंने नहीं किया, माय टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ ₹10 करोड़। तो मेरे को टीसीएस प्रोविजन करना पड़ेगा। यानी एक वो कहावत है कि भैया इनकम टैक्स पे करने के लिए आपकी इनकम होना जरूरी नहीं है, विदाउट इनकम ऑल्सो द इनकम टैक्स लाइबिलिटी कुड अराइज, विदाउट सेल ऑल्सो द टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कुड अराइज, यानी विदाउट सेल ऑल्सो द लाइबिलिटी कुड बी देयर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर किसी पार्टी ने आपको एडवांस दिया है तो वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलिवेंट कहाँ रहेगा, जहां पे मैंने वो थर्ड मैकेनिज्म बताई कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप टीसीएस पे कर दीजिए, लेकिन आपका सेक्शन जो बोलता है कि आपकी लाइबिलिटी आती है व्हेन यू रिसीव द अमाउंट, ठीक है। तो टीसीएस वेदर एडवांस अगर मेरे पास किसी पार्टी से आ गया, मैंने सेल ही नहीं किया लेकिन मेरे को पार्टी ने एडवांस दिया फॉर सेल, तो वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। टेक्निकली अ कंट्रोवर्शियल व्यू इज पॉसिबल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुड बी देयर, बट आई एम ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट अगर आपके पास एडवांस भी आता है तो टीसीएस लाइबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है, मेरे को 31 मार्च को किसी पार्टी ने एडवांस दिया 1 करोड़ रुपए का और मैंने 1 अप्रैल का सेल किया, मेरे को सेल पे लाइबिलिटी नहीं आ रही है और एडवांस पे भी लाइबिलिटी मैं कहता हूँ नहीं आएंगी, तो इट कुड नॉट बी देयर। सो एडवांस रिसीट विल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू टीसीएस। ये सिर्फ मैटर कहाँ पे अराइज होगा, जो बिलिंग पे टीसीएस सिस्टम फॉलो करेंगे कि मैं बिल में ही एक कॉलम ऐड कर देंगे टीसीएस का, तो उस केस में एडवांस अगर मनी आ गया तो वहां लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिसीव एडवांस वाज देयर, नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस समय दे नीड टू एंश्योर दैट द प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द टीसीएस प्रोविजन इज देयर इन सच केसेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को एडवांस मिला, मैंने उस पर टीसीएस भी पे कर दिया और मेरी डील ही कैंसिल हो गई, तो क्या? अब देखिए क्या होता है, अगर आपकी डील उसी क्वार्टर में क्लोज हो गई है तो क्या होता है, आप जो टीसीएस आपने पे भी किया वो महीने में पे कर दिया, अगर विद इन मंथ कैंसिल हो गया देयर इज नो हार्म, क्योंकि आप टीसीएस अगले महीने की 7 तारीख को भरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर अगले महीने में होती है लेकिन वो सेम क्वार्टर में हो जाती है, टीसीएस की तरफ को क्वार्टरली भरना होता है, आपका एक क्वार्टर में आपने पे किया अमाउंट और नेक्स्ट वो डील उस क्वार्टर में कैंसिल हो जाती है, जो टीसीएस आपने पे किया यू कैन एडजस्ट इट विथ अदर टीसीएस अमाउंट, जो अदर दूसरे बायर्स है उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस क्वार्टर में भी हुआ देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन एडजस्ट इट। लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर जब आप टीसीएस रिटर्न भर देते हो और अगर डील कैंसिल हो जाती है और आपको अमाउंट वापस देना पड़ता है, मेक इट अ पॉइंट दैट यू डोंट रिफंड द एंटायर अमाउंट, टीसीएस काट के करना पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस का क्रेडिट सेलर को नहीं मिल सकता है, सिर्फ बायर को ही टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा। तो सेलर डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू रिकवर द अमाउंट बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो विद दिस इज व्हाट वी नीड टू एंश्योर दैट दिस इज डन। अगर वो लास्ट क्वार्टर में अगर डील कैंसिल हो जाती है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, तो उसमें तो कोई चांस नहीं है, मेक इट अ पॉइंट दैट यू डोंट रिफंड द मनी, इन दैट केस सामने वाली पार्टी विल बी एबल टू गेट द क्रेडिट फॉर दैट। टू दैट एक्सटेंट अनजस्ट एनरिचमेंट रहता है कुछ जगह गवर्नमेंट का कि वो बायर भी नहीं देता है अगर पैसा, तो अनजस्ट एनरिचमेंट इज गोइंग टू बी देयर। अब क्वेश्चन आता है वेदर अगर कोई बिल्डर, अब कुछ सिचुएशन आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप, कि कोई बिल्डर अगर कोई शॉप बेचता है, फ्लैट बेचता है, बंगलो बेचता है, उसका टर्नओवर साल का 10 करोड़ से ज्यादा का है और एक फ्लैट 50-60 लाख 70 लाख का बेचता है, वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। आई टोल्ड यू कि इट इज एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स, शॉप, फ्लैट, bungalows are not sale of goods, so as such this provision is not going to be applicable. TCS will not be applicable on sale of shop, flat and bungalow. And second point ऐसा है ना, जब भी आप 50 लाख से ऊपर की कोई भी चीज बेचते हो तो सामने वाली पार्टी को TDS करना है 1%, जहाँ पे भी TDS अप्लाई होता है वहां पे भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। The second that side is also there. अब एक होता है कि whether sale of plot will be liable for TCS. I told you it's a goods, sale of goods that is liable for TCS. Whether plot sold is liable for can be treated as goods or it cannot be treated as goods. In normal way, it's not a goods, but again, Chandaxel will be able to throw on that, throw some light on this point. क्योंकि अब sale of plot is liable for GST.
तो क्या ये रिपरकशन आ सकता है? Probably I will seek his advice only, his opinion only on this point. But in my view, sale of plots will also not be liable for GST. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो रही है, कोई रोड डेवलपमेंट का काम था 15 करोड़ 20 करोड़ 50 लाख से ऊपर का कोई भी काम था, वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टरशिप के पेमेंट होते हैं, सब में टीडीएस अप्लाई होता है अंडर सेक्शन 194C। तो जहां पे भी टीडीएस अप्लाई होता है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर। और सेकंड पार्ट क्या होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज लेती है, इट्स नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, इट्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन आता है वेदर वर्क कॉन्ट्रैक्ट विल बी कवर्ड और इट विल नॉट बी कवर्ड, ठीक है ना। So technically speaking, if there is no sale of goods as such, the liability is not going to be there. In my view, the liability may not be there. एक पेट्रोल पंप है जिसका टर्नओवर साल का 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है और एक पार्टी को 50 लाख से ऊपर का सेल होता है, उसका ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनका सेल होता है, ट्रांसपोर्टर को देते हैं, whether TCS will be applicable? Yes, पेट्रोल पंप के लिए भी TCS will be applicable. मैंने माल बेचा है लेकिन मेरे को पेमेंट कैश में नहीं आया, इन काइंड आया, तो whether TCS will be applicable? तो receipt of money, does it need to be in cash or it could be in kind? I believe that even if the amount is received in kind, it will be subject to TCS. मेरे को बाय वे ऑफ बुक एंट्री मिली थी, बुक एंट्री से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। मैंने एक माल बेचा 1 करोड़ का और मेरे पास पहले 1 करोड़ 10 लाख रुपए उससे लोन लिया हुआ था, मैंने दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया। Whether TCS will be applicable? Yes. Whether in by way of book adjustment or by in kind, in my view, TCS will be applicable. Now the important question arises, शेयर ट्रांजेक्शन हो रही है, आप 50 लाख से ऊपर के शेयर परचेस करते हो या सेल करते हो, आप 10 करोड़ से ऊपर का आपका शेयर का सेल होता है साल भर में, whether TCS liability would be there in such cases? Shares are not goods. Shares are, I think shares are goods in the definition of in other acts. So probably it will be applicable TCS in such cases. But then question arises कि मैं जो माल बेच रहा हूँ ये तो पता ही नहीं कौन है, क्योंकि एक्सचेंज से रूट होता है। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन इन सच केसेस। इफ एनीथिंग इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, नो लॉ कैन बी एनफोर्स्ड. Impossibility cannot be enforced on any person, so TCS provision will not be applicable in such cases because of the impossibility of implementation. Sale to a sister concern, yes, it will be liable for TCS. एक बहुत बड़ा इश्यू आने वाला है इसके अंदर में, वो है ना मिसमैच, यानी ये सब मैं जो शुरुआत में कह रहा था कि एडिशनल कंप्लायंस बर्डन है, तो ये कंप्लायंस बर्डन ऑन दी इधर साइड है, टैक्स पेयर के लिए भी कंप्लायंस बर्डन है, टैक्स कलेक्टर के लिए भी, जो अपना सेलर है बायर है, दोनों के लिए एडिशनल कंप्लायंस बर्डन है। दोनों को रिकंसिलेशन करते रहना, ये एंट्री नहीं मिली वो एंट्री नहीं मिली, एंड एडिशनल कंप्लायंस बर्डन। फिर आया एक डिपार्टमेंट में, चूंकि वी कीप गोइंग टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो उनसे भी इक्वली जैसे यहाँ डिस्कशन हो रहा है, ऑफिसर से भी होता है डिस्कशन होता है, उनका कहना है कि हम लोग का अभी तो बर्डन बढ़ेगा इससे। तो मैंने कहा आप लोगों का तो कोई बर्डन नहीं बढ़ता, आपको तो सिर्फ एक लेटर लिखना होता है कि भैया इन्फॉर्मेशन ये दो, और वो सब कंप्लायंस बर्डन तो टैक्स पेयर के तरफ ही होता है। तो देयर इज नो बर्डन ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट एज सच, द बर्डन इज गोइंग टू बी देयर विद द टैक्स पेयर, क्योंकि अभी भी पुराने कई और टीडीएस टीसीएस रिकंसिलेशन है स्टिल पेंडिंग होती है। और सबसे बड़ा पार्ट है, अब तक रिकंसिलेशन का मैटर जो आता था वो 26AS से रिलेटेड आता था, और या फिर इनकम टैक्स डाटा और जीएसटी डाटा का रिकंसिलेशन आता है। अब इनकम टैक्स में ही इनकम टैक्स के रिकंसिलेशन और बढ़ जाएंगे, ज्यादा करना पड़ेगा। फिर 26AS में दिस विल बी एडिशनल एंट्री जो मैच करनी पड़ेंगी, एंड एज यूजुअल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएंगे कि भैया आपका टीसीएस क्या था, आपने कोई परचेस नहीं बताई है। अब उसमें ये नहीं बोल सकते परचेस तो पिछले साल में थी, पेमेंट मैंने अभी किया तो अब आया, ये हर बार आपको जवाब देने। दे ऑलरेडी नो द थिंग, बट स्टिल दे मतलब वो बताना चाहते हैं कि आप लोग भूल ना जाए कभी टैक्स डिपार्टमेंट को, इसलिए लगातार नोटिस देते हैं। और फेसलेस हो गया है, और सिर्फ क्लिक ऑफ बटन से, पहले तो नोटिस देने का खर्चा आता था कि वो एक आदमी जाता था, नोटिस प्रिंट होती थी, साइन होती थी, अब तो कोई खर्चा भी नहीं है, सिर्फ बटन प्रेस करना है एंड नोटिस आपके द्वार पे। तो दिस इज गोइंग टू बी देयर ऑल द मोर। एक जैसे क्या होता है टीडीएस में प्रोविजन है, अगर आप इंटरेस्ट किसी से ले रहे हो और आप चाहते हैं आपका टीडीएस ना हो, तो यू कैन सबमिट फॉर्म 15G एंड 15H कैन बी सबमिटेड टू द पेयर, तो उस केस में नहीं करना होता है। ऐसी एक प्रोविजन और है, अगर आप कोई जगह जाते कि टीडीएस ना हो टीसीएस ना हो, पहले के रीजन में एक ये था, यानी अभी भी है, बाकी पार्ट्स में है कि आप चाहते हो कि आपका टीसीएस ना हो, तो यू कैन अप्लाई टू दी एओ, एओ विल वेरीफाई द थिंग कि भैया आपके तो लॉसेस है पुराने, बहुत सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है, आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, तो आपको टीसीएस अप्लाई नहीं होता है। तो ऑफिसर ये लेटर इशू कर देता है जिसमें बोलता है कि टीसीएस ना किया जाए ये बायर के केस में। दिस प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ दिस न्यू लॉ दैट इज इंट्रोड्यूस, यानी पुराना जो टीसीएस वाला पार्ट है, जो अल्कोर, टिम्बर,
फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये सब जो माल था, कोल, आयरन, स्टील, इस पार्ट में अगर टीसीएस आप चाहते हो कि आपका टीसीएस ना हो, यू कैन अप्रोच द असेसिंग ऑफिसर, वो आपको कैन ऑथराइज कि इनके बिना टीसीएस के इनसे ट्रांजेक्शन कर ली जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस न्यू प्रोविजन, यानी कोई ऑप्शन नहीं है टीसीएस से बचने का। अगर 50 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन आपका पेमेंट हो गया है तो सामने वाली पार्टी का 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो ऑटोमेटिकली टीसीएस लायबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, अब जीएसटी में एक और पार्ट आता है कि मैंने यहाँ से माल बेचा, अपने राजस्थान यूनिट को अगर माल बेचता हूँ तो वो दोनों के 10 जीएसटी नंबर अलग अलग होते हैं, तो वो ट्रांसफर माना जाता है एंड दैट अट्रैक्ट जीएसटी। Whether this will be applicable in case of TCS also? No. By transferring from one hand to another hand, it is the same PAN that is going to be there, and so no TCS will be liable in intra-company transfer. If I have a transaction of both loan transaction as well as sales transaction, and service transaction is also there, whether TCS provision will be applicable। यानी मेरे को अगर किसी पार्टी ने पेमेंट दिया 49 लाख अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स दिया, 10 लाख उसने मुझे दिया है, लोन पे अमाउंट दे दिया, और 5 लाख रुपए मैंने कोई सर्विस की थी, उन लोगों के यहाँ पे कुछ काम किया था, उनका कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी की थी, उसका पेमेंट किया उन्होंने, वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल? नो। सेल अगेंस्ट जो सेल कंसिडरेशन अगेंस्ट में जो अमाउंट आया, इफ इट एक्सीड 50 लाख देन ओनली द टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। यानी इस केस में इवन इफ मेरा 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट मेरे पास में आ जा रहा है, स्टिल the TCS provision will not be applicable in such cases. Now, एक प्रोविजन है कि अगर मैं बायर परचेज कर रहा है जो गुड्स, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करता है उसको, whether TCS will be applicable? क्या होता है जब भी कोई नया कानून आता है ना तो उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। हम लोग तो प्रोफेशनल है, मेरा तो दिन रात इनकम टैक्स भी पढ़ना होता है, फिर भी अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछे ना तो एक बार लगता है एक्ट देख ले, क्योंकि क्या होता है सब आपस में कंफ्यूजिंग होती है एक दूसरे से चीजें। पुराने जो टीसीएस है, टिम्बर के केस में हो गया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के केस में, देयर इज अ प्रोविजन, अगर आप माल परचेज करते हो, अगर आप यू आर यूजिंग इट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देन टीसीएस इज नॉट लायबल। कि उसमें जैसे 15G 15H का डिक्लेरेशन है, वैसे ये भी डिक्लेरेशन दे सकते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म इज नॉट देयर इन केस ऑफ 206C1H। ये जो नया प्रोविजन है इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, यानी आप जो माल परचेज कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले रहे हो, ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, सेल के लिए ले रहे हो, कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, इट्स इमटेरियल। मैं मेरी फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू है, मैंने लोहा खरीदा 60 लाख रुपए का, इवन इफ इट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज, इट्स फॉर द फिक्स्ड एसेट पर्पज, स्टिल टीसीएस विल बी देयर। एक क्वेश्चन अचानक याद आया, एक का आया था कि मैं 60 लाख की एक कार उठा रहा हूँ, ऑडी उठा रहा हूँ, whether TCS provision will be applicable? No, TCS तो ये नया प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी कवर था पहले से ही। 10 लाख के ऊपर की कार इज लायबल फॉर TCS, तो वहां तो 10 लाख की लिमिट है, 50 लाख की लिमिट का क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो वहां दिस प्रोविजन इज ऑलरेडी गोइंग टू बी देयर। यानी मतलब ये न्यू प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, वो पुराने रीजिम में आ जाएगा, वो पुराने पार्ट में आएगा। यानी डबल टीसीएस भी नहीं होगा कि वो सेक्शन में हो जाए, ये सेक्शन में हो जाए। अगर वहां टीसीएस हो रहा है तो यहाँ दी प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब एक क्वेश्चन आता है कि चलो मैंने काटा ही, मैंने घर किया ही नहीं, कलेक्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा? मैंने कलेक्ट किया और मैंने भरा नहीं, तो मैंने कलेक्ट किया और मैंने भरा नहीं है ना, तो इट्स अ सीवियर ऑफेंस। वहां तो प्रोसिक्यूशन पूरी वो 100 करोड़ की कोठी का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करके रखती है। उस केस में अगर आप पेमेंट कलेक्ट कर लेते हो, भरते नहीं हो, तो ये बहुत सीवियर ऑफेंस है। अब अगर आपने कलेक्ट ही नहीं किया तो क्या? तो वो भी अल्टीमेटली इट्स एन ऑफेंस। आपको कलेक्ट करना था लेकिन आपने कलेक्ट नहीं किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या? जितना अमाउंट आपने कलेक्ट नहीं किया वहां तक आपको माना जाएगा यू आर अ डिफॉल्टर टू दैट एक्सटेंट, उतना अमाउंट विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपके साथ रिकवर कर सकती है। अब जैसे क्या होता है, अगर आप टीडीएस नहीं करते हो किसी पार्टी का, तो टीडीएस नहीं करते हो तो क्या करते हो, जितना आपने वो खर्चा किया है वो खर्चे का इनकम टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन टीसीएस के केस में ऐसा प्रोविजन नहीं है। यानी एक ही चीज है, आपने जितना अमाउंट पे आपने जितने Sachin, do I need to do anything? No. I will just in 5 minutes I will cover it. तो अब अगर मैंने जितना मैंने अमाउंट कलेक्ट नहीं किया उतनी मेरी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर हो जाएगा। जैसे इनकम टीडीएस के केस में प्रोविजन के पूरा का पूरा एक्सपेंसेस डिसअलाउ होता है, वैसा अभी तक प्रोविजन नहीं है, तो अमाउंट विल बी एलिजिबल एज डिडक्शन ओनली इन द हैंड्स ऑफ द क्या बोलते हैं सेलर, कि यानी वो इनकम तो ऑलरेडी ऑफर कर रहा है, कोई एडिशन और फर्दर नहीं होंगे अगर टीसीएस नहीं कलेक्ट करता है। तो सिर्फ यही है कि अमाउंट विद इंटरेस्ट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेलर। अब क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, टीडीएस में एक प्रोविजन है, अगर मैंने किसी पार्टी का टीडीएस करना था और मैंने नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में भी मेरे को असेसिंग डिफॉल्ट माना जाता था, मेरे को डिफॉल्टर माना जाता था, उतना अमाउंट का टीडीएस अमाउंट मेरे से रिकवर किया जा सकता था। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन है,
अगर सामने वाली पार्टी जिसको मैंने पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, मैंने टैक्स काटे बिना पेमेंट कर दिया, अगर उसने अपना रिटर्न भर दिया है, उसमें वो अमाउंट बता दिया और गवर्नमेंट का जो ड्यू है वो भर दिया है अगर, तो उस केस में मेरे से वो अमाउंट भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। उस केस में सिर्फ मेरे से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रिकवर हो सकता है, बाकी अमाउंट रिकवर नहीं हो सकता। लेट मी क्लेरिफाई कि मेरे को किसी से 1 लाख रुपए की सर्विसेज ली मैंने, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए का टीडीएस काटना था, मैंने नहीं काटा, मैंने 1 लाख का पेमेंट कर दिया। पहला प्रोविजन बोलता है कि मेरे को 1 लाख का बिजनेस का डिडक्शन, एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 1 लाख विल बी मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख की मेरी इनकम भी मानी जा रही है, ऐसा इंडायरेक्ट व्यू रहा, ठीक है। लेकिन अब उसमें प्रोविजन क्या है, अगर सामने वाले ने वो 1 लाख अपने इनकम में ऑफर कर दिया है, रिटर्न भर दिया है, उसमें बता दिया उसका टैक्स भर दिया है, तो वो अमाउंट मेरा डिसअलाउ नहीं होगा, यानी मेरे इनकम में एड बैक नहीं होगा, मेरे को उसका एक्सपेंसेस मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ये टीडीएस के रेफरेंस में कैन इट बी देयर फॉर टीसीएस ऑल्सो? नो, यानी जो टीसीएस के ये जो नया सेक्शन है इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है। यानी पुराने जो टीसीएस के सेक्शन है, जो कोल, मोटर व्हीकल, सॉरी कोल और अपना आयरन, ये सब चीजों में जो भी सेल होता है, अगर उसमें टीसीएस नहीं किया गया है, लेकिन सामने वाले पार्टी ने अगर वो इनकम में ऑफर कर चुका है, उसके रिटर्न में बता चुका है, तो सेलर से रिकवर नहीं किया जा सकता पुराने प्रोविजन में। नए प्रोविजन में कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है, अगर सामने वाले पार्टी ने उसको इनकम में बता भी दिया, रिटर्न में भर भी दिया उसने रिटर्न, तो भी द अमाउंट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम मी, यानी सामने वाले पार्टी ने भी उसको ऑफर कर दिया होगा, तो भी इन दैट केस द अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम मी। अब ये बड़ा अनजस्ट एनरिचमेंट अगेन नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा कि गवर्नमेंट 2 आदमी से सेम चीज के लिए पैसा ले रही, उसने तो इनकम में ऑफर कर दिया है, उसको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाद में उसके लिए रिटर्न और फॉर्मेलिटीज नहीं हो पाएंगे, यानी उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा और मेरे से भी अमाउंट रिकवर हो जाएगा। टू दैट एक्सटेंट ये गलत होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी अगर कोई माल यूज करता है, स्टिल दिस न्यू टीसीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। स्क्रीन आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि आपने बिल में दूसरे चार्जेस लगाए हैं, तो क्या उस पर भी टीसीएस अप्लाई करना होगा? जैसे 1 करोड़ 18 लाख का अपना एग्जांपल था, मैंने 50 रुपए भाड़ा भी ले लिया, उसका लोडिंग अनलोडिंग चार्ज का भी लिया है, तो वेदर टीसीएस विल बी एप्लीकेबल? टेक्निकली देखा जाए जो भी सेल कंसिडरेशन का पार्ट है दैट विल बी लायबल फॉर टीसीएस, लेकिन अगर वो सेल कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है तो दैट विल नॉट बी लायबल। टू बी ऑन अ सेफर साइड, कुछ जगह ऐसी है जहां बिना टीसीएस के काम कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इट्स नॉट वर्थवाइल टू फाइट द थिंग्स कंसीडरिंग द अमाउंट इन्वॉल्व। तो अगर टोटल जितना अमाउंट हो रहा है वो टोटल पे टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बी बेटर। अब वेदर मेरे को अगर बायर से ब्याज भी आ रहा है, मैंने माल बेचा तो उसका ब्याज भी आ रहा है, वेदर इट विल बी लायबल फॉर टीसीएस। अब वो तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बायर और सेलर की, उस पर डिपेंड करेगा। नॉर्मली अगर सिंपलिसिटर लोन और उसका इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन हो रही है, तब तो कोई टीसीएस अप्लाई नहीं होगा इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर वो बेसिक ट्रांजेक्शन वैल्यू पे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, वो उसी का पार्ट है कि उसने पेमेंट लेट किया, तो इट्स अगेन कुड बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन। कि भैया उसका टोटल मैंने 1 करोड़ 18 लाख की बिलिंग की, लेकिन इनडायरेक्टली इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ओनली, तो दिस कुड अप्लाई। द इशू इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल, बोथ व्यू इज पॉसिबल, बट अगर पॉसिबल हो सकता है तो वहां तक कंप्लायंस इज ऑलवेज बेटर देन नॉन कंप्लायंस विद दिस। Friends, these are the provisions that is there as far as the TCS of sale of goods is concerned. अगर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए तो we can speak for hours on this topic. सिर्फ 10-15 लाइन है ऐसे सेक्शंस की, बट इसमें so many other issues are involved कि वो कंप्लीट नहीं हो सकता। Along with this, टोटल TCS के 2 प्रोविजन और एड ऑन हुए इस बार, वो है कि फॉरेन रेमिटेंसेज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में अगर कोई पेमेंट करते हैं दैट विल बी लायबल फॉर TCS, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरसीज टूर पैकेज अगर कोई लेता है that will also be subject to TCS। क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज हम सब लोगों के लिए रेलिवेंट रहेगा, आई एम नॉट कवरिंग इट, लेकिन एक से छोटा सा एग्जांपल कवर करता हूँ कि जो समय से यानी ट्रेन क्या चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, डाटाबेस किस तरीके से काम करता है और आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, या उनके मैकेनिज्म कैसे होंगे, उसकी मोडस ऑपरेंडी कैसे होंगी, दैट आई वुड सजेस्ट। एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड किया है। जैसे अब तक हम लोग क्या टीडीएस का एक ही रेट होता है, यानी कोई भी रहे, अगर कोई भी प्रोफेशनल बिल आया 10% टीसीएस काटना है, हम लोग टीडीएस काटना है हम लोगों को, हम 10% काटते हैं। लेकिन एक अभी कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस लाया है, सेक्शन 194N लाया है कि अगर कोई बैंक से 1 करोड़ से ऊपर की कैश विड्रॉल होती है तो उसको बैंक को टीडीएस करना है। इसमें नया कॉन्सेप्ट लाया है कि अगर आप रिटर्न भरते हो तो टीडीएस का रेट अलग है, टीडीएस के थ्रेशोल्ड अलग है, और रिटर्न नहीं भरते हो तो लिमिट अलग है और थ्रेशोल्ड अलग है। यानी अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो आपका टीडीएस रेट 2% का रहेगा और 1 करोड़ के ऊपर लगेगा। अगर आप रिटर्न नहीं भर रहे हो, 3 साल तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरा है, तो आपका टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख रहेंगी। 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो टीडीएस रेट है 2% है,
और 1 करोड़ के ऊपर में टीडीएस का रेट 5% है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस कि आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, क्या थॉट प्रोसेस है, वो देखने लायक है। अब गवर्नमेंट में इतना सारा डाटा बेस फ्लो हो रहा है, इतना डाटा फ्लो हो रहा है और पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रहा है। तो पहले जो इतने मैन पावर इन्वॉल्व, मैन पावर 25% पे आ जाएंगे, 100% डाटा अवेलेबल है। अब ये जो डाटा है कि 3 साल रिटर्न भरा या ना भरा, ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने पोर्टल पे दे रही है, यानी वहां जाके पैन नंबर डाल दो और देख लो भैया इसको क्या रेट पे टीडीएस काटना है बता दो मेरे को, तो वो बता देता है इसमें आपको 20 लाख से काटना है, इस पे आपको 1 करोड़ से काटना है, इसमें ये टीडीएस रेट है। यानी ये लेवल पे वर्किंग हो रही है। तो आने वाला सिस्टम जो है ये पूरा स्पेसिफिक टैक्स पेयर स्पेसिफिक मूवमेंट होंगी और इस तरीके से मूव होने वाला है। दिस इज द न्यू वे द डिपार्टमेंट इज वर्किंग। जस्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि कोरोना में पर टैक्सेस कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी टैक्सेस हर बार नए नए आते हैं। द मोर दे टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन, जब भी कभी सिंप्लीफिकेशन की बात अगर सुनेंगे ना तो तैयार रहिएगा कि वो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। एंड टैक्स हैज टू ग्रो विदाउट द रेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, this was I was just try to cover in the best possible time. I was just try to cover this. Over to you, Sachin sir. थैंक यू नरेश भैया, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कभी कभी एक छोटा सा लाइन दे देते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए कि 4 लाइन इंक्लूड कर दो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं रखे, लेकिन सुरेंद्र शर्मा बोलते हैं कि 4 लाइनें सुना रहा हूँ और वो 4 लाइन सुना के उसके बाद कितना बड़ा इम्पैक्ट कर देते हैं, ये शायद गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। क्योंकि काफी डेटा उनके पास अवेलेबल है, कई जगह से डेटा माइनिंग करना है तो माइनिंग करके वो टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं, लोगों को पकड़ सकते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ नया करना हर एक की इच्छा रहती है कि कुछ नया चाहिए। कल ही किसी से बात हो रही थी, बोलते हर 5 मिनट में कुछ नया चाहिए, तो गवर्नमेंट भी ये देख रही हर 5 मिनट में टैक्सेशन में भी कुछ नया लाए, नई प्रोविजन लाए, और बिजनेसमैन भी देखते हैं हर 5 मिनट में हर कुछ समय में नया प्रोविजन कुछ आ रहा है क्या। सर स्टिल कंक्लूड एक चांडक सर से कुछ रिमार्क्स ले सर, आप पहले कुछ रिमार्क्स देंगे या फिर क्वेश्चन आंसर पहले ले? चांडक सर क्वेश्चन आंसर ले लो। क्वेश्चन आंसर सर, नरेश भैया कुछ क्वेश्चंस आए चैट बॉक्स में, क्या मेरे को एक बार उसको कवर कर ले, और जिससे क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस। नरेश भैया आप चैट बॉक्स से लेंगे क्वेश्चंस? हाँ, अगर वो पूछ लेंगे अपफ्रंट हो जाएगा, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ दिस चैट बॉक्स। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स में मैं आपको बताता हूँ। Following the principles of actual accounting, can the sale amount be treated as receipt of the sale consideration and provision of TCS to be complied with? नहीं, एक्चुअली टेक्निकली क्या होता है, मतलब ये वाला पार्ट मैंने तो कवर कर दिया कि बिलिंग पे ही अगर वो टीसीएस कलेक्ट करके करेंगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन टेक्निकली अगर सेक्शन की वर्डिंग के हिसाब से जाते हैं, दे हैव एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स। वो बोलते हैं कि रिसिप्ट ऑफ मनी पे आपको टैक्स पे करना है, ना कि बिलिंग पे। तो गोइंग बाय द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन इट कैन नॉट बी डन। लेकिन ये है कि चूंकि डिपार्टमेंट के फेवर में है तो इट विल बी एक्सेप्टेड। या ओके, सेकंड क्वेश्चन है विवेक कुमार दालमिया जी का, निकल से अकोला से। My turnover is less than 5 crores and vendor has turnover of more than 10 crores. How this position is going to affect? नहीं, इनका टर्नओवर 5 करोड़ है, लेकिन इनके जो वेंडर्स है उनका टर्नओवर 10 करोड़ है। I think this position बायर का टर्नओवर इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बायर बिजनेस नहीं भी कर रहा होगा ना, स्टिल टीसीएस लायबिलिटी कुछ भी दे। यानी मेरा टर्नओवर, सेलर का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है, तो कोई भी पार्टी आ जाए जिससे 50 लाख से ऊपर का अगर वो मेरे को पेमेंट करेगा, दे विल बी लायबल फॉर टीसीएस। अब एक एग्जांपल कर लो ना, कोई आदमी अपना घर बनाता है, सेलर ऑफ गुड्स, यानी मैं मेरा टर्नओवर, यस सर मेरा टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, कोई आता है अपने घर बनाने के लिए मेरे से लोहा लेने के लिए आता है और 60 लाख का लोहा लेके जाता है, 60 लाख का पेमेंट कर देता है, टीसीएस इज गोइंग टू बी देयर। यानी उसको सामने वाले बायर का टर्नओवर पर्पस कोई भी रेलेवेंट नहीं है। यस, नेक्स्ट इज हाईसी सेल्स पे टीसीएस एप्लीकेबल है क्या? आई थिंक दिस इज हाईसी सेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है, मेरे ख्याल से एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए वाला, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो दोनों पार्ट उससे परव्यू से बाहर है। या एंड वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन सॉफ्टवेयर कंपनी? सॉफ्टवेयर कंपनी आर, इट्स नॉट अ सेल ऑफ गुड्स, इट्स अ सेल ऑफ सर्विस। लेकिन कुछ जगह पे क्या है, वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया गया है कि उसको गुड्स कलेक्ट करने के लिए, जीएसटी कलेक्ट करने के लिए उसको गुड्स में रखा गया है। टेक्निकली it will not be liable for TCS sir. Chandak sir can throw some light on this, whether it's a सर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट सर इसमें ऐसा हो जाता है, एक थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर आपके बोलने पहले, कि
ये पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए कोई गुड्स की डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया, बट दिस इज ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो सर आई थिंक वी शुड, आप इसके ऊपर बताइए कि गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी से लेना चाहिए कुछ और चाणक सर। सचिन, यू आर राइट, जीएसटी से आप डेफिनेशन नहीं लो। इंडिया के अंदर में प्रॉपर लेजिस्लेशन इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड एनीथिंग व्हिच हैज बीन कवर्ड बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट will be considered as a sale of goods. This is only because Article 366(12)A of the Constitution of India and Article 366(29)A of the Constitution of India. तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर में जो भी आपका गुड्स डिफाइन हो जाएगा, कवर होगा, उसके ऊपर में सेल ऑफ गुड्स कवर होगा। जहाँ तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, दो टाइप के सॉफ्टवेयर बिकते हैं। एक तो ओवर द काउंटर सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, जैसे टैली हो गया या ईआरपी सिस्टम या ऐसे जो भी है वो करते हैं। और दूसरा होता है कि जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर है। तो जहाँ तक टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर में डिसीजन है कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज नॉट गुड, बट द ओवर द काउंटर जो सॉफ्टवेयर सेल होते हैं, इट्स अ गुड्स। देयरफॉर it is applicability of this TCS provision in relation to software companies is required to be determine whether they are selling tailor-made software or whether they are selling off-the-shelf software. Right. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. अमुक कुछ भैया ऑनलाइन तो यही क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन नहीं, अगर किसी दो तीन क्वेश्चन वैसे है, दो तीन क्वेश्चन और है, दो तीन क्वेश्चन ऐसे। एक तो है कृष्ण मोहन जी का क्वेश्चन है, while generating e-way bill whether TCS be shown in the bill. According to me, TCS is not a sale consideration, so it is not required to be shown. Even आप थर्ड मॉडल जो इसने सजेस्ट किया है नरेश ने, वो भी एक्सेप्ट करेंगे तो भी वो TCS ई-वे बिल के अंदर में नहीं आएगा। जहां तक हाईसी सेल का सवाल है, हाईसी सेल इज नाइदर एन इंपोर्ट नॉर एन एक्सपोर्ट. It is only for the purposes of Sales Tax Act, and under the Central Sales Tax Act, it is considered as a sale in the course of import or export, not as a direct export sale or import sale. Therefore, हाईसी सेल के अंदर में अगर पार्टी लोकल है और सेल लोकल पार्टी है, नॉर्मली वही होगा कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और मैं किसी नागपुर की पार्टी को या हिंदुस्तान के किसी पार्टी को सेल कर रहा हूँ. While the goods are lying in a custom bounded warehouse, it is considered as a HC sale, but it is a sale in India, and therefore the TCS provision on HC sales will apply. सवाल एक्सपोर्ट सेल का सवाल आता है, एक्सपोर्ट सेल के ऊपर में भी it is a sale of goods, no doubt about it. बट सवाल ये आएगा कि एक्सपोर्ट सेल के ऊपर में इसलिए नहीं आएगा TCS क्योंकि your jurisdiction over the buyer, India's jurisdiction over the buyer is not applicable, therefore the export sale के ऊपर में TCS नहीं आएगा. और उसी केस के अंदर में एक और क्वेश्चन आया है मिस्टर विवेक कुमार डालमिया जी का है कि TCS कैसे करें, हमें LC से पेमेंट हो रहा है, पेमेंट कैसे भी होवे, आपसे LC से होवे, कैश से होवे, अकाउंटिंग एंट्री से होवे, बुक एंट्री से होवे, TCS आपको करना पड़ेगा. ओनली थिंग, अगर LC का पेमेंट एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आ रहा है, आपके डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर में आ रहा है, माइंड वेल हमारे दिमाग में बहुत सारी कंसेप्ट है. डीम एक्सपोर्ट की कंसेप्ट है, मर्चेंट एक्सपोर्ट की कंसेप्ट है. डीम एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्ट दोनों कवर होएंगे TCS के अंदर में, बट डायरेक्ट एक्सपोर्ट आपका कवर नहीं होगा TCS के अंदर में. ये एक बताना चाहता हूँ सर. उसमें एक सर एक्सपोर्ट जो है उन्होंने क्या हुआ था, ओरिजिनली जब बजट आया था फाइनेंस बिल का पार्ट नहीं था कि एक्सपोर्ट पे वेदर TCS विल बी अप्लाइंग, विल बी देयर और विल नॉट बी देयर. लेकिन बाद में जब बजट पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो उन्होंने बायर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया. यानी एक्सपोर्ट उसका कारण ही वही है ना कि तुम्हारा जुरिडिक्शन ही नहीं आता है ना वहाँ पे. You don't have a jurisdiction over there. Yes, sir. You don't have a jurisdiction unless you remit, unless the person is taxable in India, like you, he provides the services and you remit, आपका TDS आता है क्योंकि उसकी इनकम इंडिया के अंदर में आएगी, पर इसके अंदर में इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं आएगी. Yes, sir.
3 एक तुमने क्वेश्चन उठाया था नरेश सेल ऑफ प्लॉट के बारे में, सर जीएसटी के अंदर लायबल है, ये आपका व्यू है एडवांस अथॉरिटी के रूलिंग के वजह से? आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन दैट सेल ऑफ प्लॉट is not at all liable to GST. In any case, it is a sale of a land and therefore there is no GST applicable. In any case, even GST applicable भी होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो applicable कैसे हो रही है, सेल ऑफ प्लॉट पे नहीं हो रही है, वो से आपके आ रही है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है इसलिए आ रही है, और जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं आप तो यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, एंड सिंस यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज उसके ऊपर में टीसीएस नहीं आएगा। जहां तक शेयर का सवाल है, शेयर के ट्रांजैक्शन का, शेयर आर नॉट गुड्स, गो टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गो टू द सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स में क्लियरली लिखा हुआ है शेयर्स आर नॉट गुड, एंड देयरफॉर शेयर के ट्रांजैक्शन के ऊपर में टीसीएस नहीं अप्लाई होगा। These are the clarification which I thought I should give. Yes sir. सिक विवेक दालमिया जी कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो विवेक जी आप अनम्यूट करके एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, हैंड रेज किया है उन्होंने। विवेक जी, विवेक दालमिया जी। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने की जो अपॉर्चुनिटी दी। सर अब उसमें एक बेसिक जैसे एक सवाल यह है कि मेरा टर्नओवर अगर लेस देन 10 करोड़ रहता है और मेरे बायर का टर्नओवर ज्यादा है, तो और हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन मोर देन 50 लाख का होता है, तो will the buyer in that case apply TCS on our transaction? No, absolutely not. पहली चीज है टीसीएस के दो पार्ट है, सेलर एंड बायर। लाइबिलिटी पूरी की पूरी आती है सेलर की कलेक्ट करने की, ठीक है ना। अगर सेलर की लाइबिलिटी सिर्फ उसी समय आएंगी जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। बायर का टर्नओवर 100 करोड़ भी रहे, 1000 करोड़ है, कोई मैटर नहीं करेगा। मेरा टर्नओवर जिस दिन 10 करोड़ से ज्यादा हो गया उस समय मेरे को टैक्स कलेक्ट करके भरना है, और मेरे को बायर का टर्नओवर से लेना देना भी नहीं है। सिर्फ बायर एक ही चीज के लिए रिलेवेंट है, उसके टर्नओवर रिलेवेंट नहीं है। बायर अगर 50 लाख से ऊपर का मेरे को पेमेंट करता है एक साल में, तो यानी अगर देखा जाए मैंने किसी को माल बेचा है, 60 लाख रुपए का माल बेचा है, और अगर 30 लाख का पेमेंट मुझे इस साल करता है, 30 लाख का पेमेंट अगले साल करता है, कोई टीसीएस की लायबिलिटी टेक्निकली नहीं आती है ऐसे देखा जाए। और बायर का टर्नओवर कितना भी रहे इट्स इररिलेवेंट। हाँ जी जी सर और एक फॉलोअप क्वेश्चन था, इफ आई कैन आस्क। यस श्योर सर फॉर सिंप्लीफिकेशन सेक, अभी मान लीजिए 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है ये टीसीएस। अभी मेरा किसी से ऑलरेडी 50 लाख का मेरा सेल जो है परचेज हो चुका है किसी से। अभी 1 अक्टूबर को वो आदमी अगर मुझे जो है कुछ माल बेचता है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी 50 लाख हो चुका है, 10 लाख का बिल और बनता है। ऑन 1 अक्टूबर ऑन द परचेज ट्रांजेक्शन, व्हाट विल बी द एप्लीकेबल टीसीएस लायबिलिटी अपॉन मी? ठीक है, अब ये तय है इसमें जो मैंने कहा है आपको पहले भी अपने एग्जांपल्स मैंने पीपीटी में जो कवर किए थे। दी मोमेंट मेरा पुराने जो 50 लाख अगर मेरा ऑलरेडी आ चुका है 30 सितंबर के पहले अगर आ चुका है मेरे पास में, ठीक है, तो मेरे को पूरे अमाउंट पे टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। यानी 10 लाख जो आएगा 10 लाख विल बी सब्जेक्ट टू टीसीएस। अब एग्जांपल कीजिए मेरा 30 सितंबर तक मेरे पास 45 लाख आ चुका था मेरे पास में, और मेरे पास 1 अक्टूबर को 10 लाख रुपए आता है, तो मेरा पहले चूंकि 45 लाख आ चुका था तो 45 लाख वो काउंट होगा। 50 लाख तक कोई टीसीएस नहीं है तो 5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, और बैलेंस 5 लाख पे ही सिर्फ टीसीएस लगेगा। ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विवेक कृष्ण विवेक Sachin, there are 2 person who raised the hand. Yes sir, one more person is there, Mr. Krishna Mohan। कृष्णा भैया, कृष्णा भैया अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए भैया। कृष्ण मोहन जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल सेशन। सर मुझे एक पूछना था कि जॉब वर्क चार्जेस के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल है क्या? नहीं, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स इज ओनली लायबल फॉर टीसीएस, इट्स अ गुड्स। अगर गुड्स नहीं है तो लायबिलिटी ऑफ टीसीएस नॉट देयर, पहली चीज। और दूसरा क्या होता है जॉब वर्क में एक और क्या पैरामीटर्स मैं बताता हूँ आपको, कि जब आप जॉब वर्क कराते हो तो उसका टीडीएस का चयन नॉर्मली करना होता है, ठीक है, तो जहाँ पे भी टीडीएस आ जाए वहां पे भी नहीं आएगा। जॉब वर्क इज आल्सो अदरवाइज आल्सो नॉट कवर्ड विद दैट। यस सर, थैंक यू सर। धवल शाह सर, धवल शाह जी। धवल,
थैंक यू फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सर एक सवाल है सर, मान लीजिए सेल 30 सितंबर तक 60 लाख रुपए का हो जाता है, 2 बार मेरे को पैसा 30 लाख ही आया है, ठीक है, और 1 अक्टूबर के बाद 30 लाख रुपए और आता है, ठीक है, तो मेरे को 10 लाख के ऊपर लायबिलिटी बनेगा? ऑफकोर्स। क्या 30 लाख मेरे पास पहले आ गया, मेरी 50 लाख की लिमिट पूरी नहीं हुई थी, फिर बाद में 1 अक्टूबर के बाद जब 30 लाख आता है तो 20 लाख का मेरा थ्रेशोल्ड खाली था वहां पे पुराना, तो 20 लाख उसमें चले गया और 10 लाख पे टीसीएस की लायबिलिटी आएंगी। अब देखिए इसमें कैसा था, लॉ एंड लॉजिक का जो रिलेशन है ना, जब आपने माल बेचा था ना उस समय तो टीसीएस प्रोविजन अप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक है ना। लेकिन क्या गया, 1 अक्टूबर को उन्होंने टीसीएस प्रोविजन अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन का ट्रिगर पॉइंट उन्होंने दिया रिसिप्ट ऑफ मनी, तो आपके पास अगर 50 लाख के ऊपर की रिसिप्ट ऑफ मनी हो जाती है, टीसीएस अप्लाई हो जाता है, यानी वो जो 50 लाख इन ईयर काउंट करना है, तो 30 सितंबर तक जो पेमेंट आया ना वो भी इन ईयर का पार्ट है, यानी ऐसा नहीं कि जो 50 लाख 1 अक्टूबर के बाद से आएंगे सिर्फ वो काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो 30 लाख है वो भी काउंट होगा, और जो 30 लाख आया तो मेरी 30 लाख की वो लिमिट और 20 लाख से वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो 50 लाख एक्सक्लूजन में चले गया, सिर्फ 10 लाख पे टीसीएस प्रोविजन आ जा रहा है। ठीक है सर, बायर आइडेंटिफाई करने के लिए जो 10 लाख का लिमिट है, उसमें मान लीजिए मैं किसी को 9 लाख का सेल किया हूं, सॉरी, बायर आइडेंटिफाई करने के लिए जो 50 लाख का लिमिट है, उसमें मेरा सेल है 45 लाख का, 45 लाख के ऊपर 18% जीएसटी 8 लाख रुपए वसूल किया मैंने, टोटल मेरा अमाउंट हो गया 53 लाख। तो क्या ये बायर एलिजिबल रहेगा? क्या मेरे को लायबिलिटी रहेगी इस बायर पे टीसीएस काटने की? क्या होता है, अब आपको टीसीएस कौन से अमाउंट पे करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब टीसीएस के लिए जो अमाउंट आ रहा है ना, दैट अमाउंट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि जो सीबीटीटी ने एक एफएक्यू रिलीज किया था, एमपी हाईकोर्ट का विशाल राठौर का 282-117 वाला जो जजमेंट था, ये सब चीजें की बोलता है कि टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन जीएसटी ऑल्सो, यानी कुल मिला के जो 50 लाख की लिमिट काउंट करनी है, इट विल बी अ टोटल अमाउंट, यानी फॉर दैट मैटर 45 लाख का माल था, 9 लाख का जीएसटी लगा, 54 लाख हो गया, तो मेरे पे अगर मेरा 54 लाख का अमाउंट आ गया, दी टीसीएस लायबिलिटी इज गोइंग टू बी देयर। यस सर मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा सर मेरे क्वेश्चन को। सर 1H अगर मैं बेयर एक्ट से पढ़ता हूं तो ये है, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच एक्सीड्स 50 लाख। यस, तो सर पेमेंट 50 लाख को कंसीडर करना है या मेरा सेल का वैल्यू 50 लाख कंसीडर करना है? आपका एक कमीशन क्या है कि मेरे पास जब 54 लाख रुपए किसी पार्टी का आता है तो मेरा खुद का तो 45 लाख ही आ रहा है, 9 लाख तो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है। ये एक नॉर्मल कहना आता है कि भैया मेरा 9 लाख तो मेरा ही नहीं, आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, गवर्नमेंट को बताओ मेरा तो सिर्फ 45 लाख की है, ऐसे देखा जाए तो। नहीं। तो व्यू लिया गया है, सीबीटीटी बोर्ड ने भी जो व्यू लिया है, जो एमपी हाईकोर्ट ने व्यू लिया है कि टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू 54 लाख की है। दिस इज दी सेटल्ड प्रोविजंस है। अब अनलेस एंड दो चीजें, या तो सीबीटीटी क्लेरिफाई नहीं करती है, या सुप्रीम कोर्ट तक वापस मैटर नहीं चाहता है, या फर्दर हायर जुडिशरी उसको क्लेरिफाई नहीं करती है, द इश्यू विल बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू कुछ हद तक रहेगा। अगर मेरे को ऑनेस्टली पूछा जाए तो मैं कहूंगा इट्स अ वर्थ फाइटिंग द केस अगर कोई इशू है, एंड सूनर और लेटर द कोर्ट विल डिसाइड इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर ओनली। क्योंकि क्या होता है, जो पुराने ये जो एफएक्यू आई थी सीबीटीटी की और जो एमपी हाईकोर्ट का जजमेंट था, वो जजमेंट में क्रैश जो था ना, वहां पे 206C1 और 3 ऐसे वो सेक्शन के रेफरेंस में था, ये वाला 1A के रेफरेंस में था, वहां पे वर्ड यूज हुआ था एनी वैल्यू, है ना, वेदर पेएबल, ऐसे वर्ड यूज हुए थे। यहाँ के वर्ड अलग है। इट्स वर्थ फाइटिंग, लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि अब अमाउंट जो इन्वॉल्व है इतना छोटा अमाउंट इन्वॉल्व है, इट्स नॉट वर्थ फाइटिंग ऑल्सो। तो आई विल सजेस्ट कि अमाउंट पे कर लिया बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लिटिगेशन कॉस्ट बहुत महंगी है। Thank you very much, sir. Yes, sir. Welcome. Sachin, before you conclude, if I can share some information.